Bismillahirrahmanirrahim. Prestigious chief guests, Mr. Altaf Tai, Chairman Abad, esteemed delegates from Abad, distinguished speakers and panelists, my cherished audience and valued representatives from media. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Your appearance on this day full of wonderful experiences is highly appreciated and your presence is of great honor to us. I, Hira Naeem, am honored to be assigned as the mistress of the ceremony for conducting this game-changing event on real estate, the PropTech Convention, in conjunction with one of the biggest building material and construction industry show of Pakistan's 16th Build Asia. And it's my utmost pleasure to extend a wholehearted welcome to you all to this mega event organized by Landtrack.pk and Magna Engineering. So first of all, let us praise to the Almighty Allah. Because of His blessings, we have been able to be gathered here. So let's hear some verses from Quran. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Ye online. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jazakallah. Now, without any further delay, I would request our chief guest, Mr. Altaf Tai Saab, Chairman Abad, along with the delegations from Abad, including Mr. Raheel Range and Mr. Nadeem Jiwa, along with all the speakers and panelists who are present here, to please join us on the stage and officially inaugurate the conference by cutting the ribbon. Ladies and gentlemen, please give them a warm welcome on the stage. Sir, please. नहीं, please carry on. आतिफ, please इधर भी देंगे. So all good to go. Atif, please join the ceremony. Hold to the ribbon for a second for a photograph, please. All good? Okay, please proceed with the cutting. Thank you. You all may take your seats. So, my dear audience, let me introduce you a bit to the event. Today, we are proud to call this convention a revolutionary event in the real estate industry because it exhibits the importance of technology in the real estate sector and in the enhancement of this sector as well. It unfolds many collaboration opportunities for the builders and developers, realtors, marketing companies, tech companies, and also represents the role of REITs as the future of the real estate of Pakistan. So proceeding further, we would like to thank Abad for being our support partner and to our wonderful sponsors for their tremendous support in making this event happen today. So a special thank goes to Abad, Arif Habib Dolman REITs, TPL REIT, Azad Properties, Mark Properties and Desire Properties, along with all our support and media partners. Now I would request my beautiful co-host Sidra Mahmood Jafi to take up the event from here. Over to you, Sidra. Now we would like Mr. Zegam Rizvi, our guest of honor, to come on stage and talk about affordable housing models, issues we know and answers we know. Please welcome Mr. Zegam Rizvi. Sir, we are truly grateful that you've joined us for the event. Please join us on the stage.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मौजू पे मैंने बहुत सोचा था, अफोर्डेबिलिटी के एंगल से मैं क्या बात करूं, तो मैंने फिर जो टॉपिक सुना है वो स्लम्स का चुना है, इसलिए कि बहुत मशहूर किताब है बाई हर्नेंडो डे सोटो, उसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ कैपिटल। उसमें वो ये कहता है कि जी स्लम्स के बारे में, द पुअर आर सिटिंग ऑन एसेट प्रॉपर्टी लैंड which is worth billions of dollars, but which is of no use to them and no use to the society at large. This is the basic definition कि गरीब जो है, अब आप जाइए, एक मिसाल है कराची डिफेंस। कराची डिफेंस में 3 कच्ची आबादी हैं डिफेंस में, और नीलम कॉलोनी ये वो 3 है। वो लोग, उनकी गलियों में आप बाहर से देख सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी करेजियस टू गो इनसाइड। और डिफेंस में 500 गज का प्लॉट शायद आज 8-10 करोड़ में नहीं मिलेगा। तो वो वही लैंड की जो इक्विटी को जिसे कहते हैं अनलॉकिंग द इक्विटी पोटेंशियल, अगर आज आप वो करें तो वहीं पर उनको बेहतरीन हाई राइज में अपार्टमेंट भी हम दे सकते हैं, और वहीं पर वो जो बाकी है एक सोसाइटी में डिसिप्लिन भी आ जाए। तो देखिए स्लम्स की डेफिनेशन वगैरह तो है बेसिक, तो वो आपको पता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो दुनिया में तो स्लम्स आर जो अर्बनाइजेशन की वजह से होती हैं। पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पोस्ट कराची, क्योंकि जहाँ पे देखे ना, अमेरिका में हम रहे, देखा कि वहाँ पे कोई इलीगल इमिग्रेंट होगा ना, वो छुप के रहता है, कोई पता नहीं लगता है। ये वाहिद शहर है जिसमें बंगाली पाड़ा एक बस्ती है, एक नहीं अब तो 2 हो गई हैं, अफगान बस्ती है। और अफगान बस्ती जिन लोगों ने जाके देखा हो, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड बैंक, आई हैड सीन काबुल के जो सारी ये बस्तियां थीं। ये जो कटी पहाड़ी हम कहते हैं कराची में, ये भी बेसिकली अफगानिस्तान, क्योंकि इस जो है ना उसके सारे तरफ पहाड़ हैं। तो जब काबुल की आबादी बढ़ी तो वहाँ पे इसी तरह पहाड़ों को काट काट के पूरे इनफॉर्मल हिल सेटलमेंट्स कहलाती हैं। वो इंग्लिश वाले कहते हैं, लेकिन अगर शायद काबुली जो है वो इसको वो वहाँ की कटी पहाड़ी कहते हैं। सो दिस इज द वे यू आर नाउ सी। तो मैंने ये सोच के कि ये बात हम करें, देखें ना हो क्यों रहा है स्लम्स की रीजन बड़ी सिंपल है। एक तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि जी पाकिस्तान 1970 में वेस्ट पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान बन गया। अब उस वक्त इसकी आबादी, बांग्लादेश की आबादी स्लाइटली मोर देन 50 मिलियन और वेस्ट पाकिस्तान की आबादी मार्जिनली लेस देन 50 मिलियन, मैंने कि वो 51% थे, हम 49%। दैट्स व्हाई दे हैड द राइट क्लेम दैट वी नीड टू रूल इन दिस कंट्री। दे वर नॉट रॉन्ग। वो जो था उस वक्त, जो वेस्ट पाकिस्तान की आबादी अराउंड 50 मिलियन थी, उसको अगर जो आप डिवाइड करें तो पॉपुलेशन एरिया तो वही है ना पाकिस्तान का, जो उस 70 में था, आज उतना वही एरिया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी टर्न्ड आउट टू बी 66% पर स्क्वायर किलोमीटर। आज वही एरिया है, अब पॉपुलेशन इज 230 मिलियन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी टुडे इज अबाउट 256 persons per square kilometer, from 66 in 1970 to 256 today is about 4 times. Another 30 years or so, even बाज़ जगह तो less than that कहते हैं, our population is going to be close than 485 million. और ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक, और वर्ल्डोमीटर के नाम से भी उसे कहते हैं। उसमें आप जाएं तो सब जगहों की आपको पॉपुलेशन किस तरह ग्रोथ है वो सारा डिजिटली वो डेवलप करते हैं। तो वो जो है वो ये कह रहा है कि जी हमारी आबादी जो है वो 400 के करीब हो जाएगी, विच मीन्स विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 256 persons per square kilometer टुडे, इसी पाकिस्तान की आबादी आर गोइंग टू बी अराउंड 450 persons per square kilometer। मीनिंग 1970 में उस जमीन ने एक आदमी की जरूरत पूरी करनी थी, आज 4 गुना ज्यादा आदमियों की उसी जमीन में जरूरत पूरी करनी है।
और अबाउट 30-35 ईयर्स फ्रॉम नाउ 8 आदमियों की उसी जमीन ने, और रोटी कपड़ा और मकान 3 चीजों को ले तो मीनिंग वी नीड मोर वीट उसी जमीन से, जिसे हम कहते हैं पर हेक्टर यील्ड प्रोडक्शन जो है हमारी बढ़नी चाहिए, कॉटन बढ़नी चाहिए, एंड हाउसिंग। ये अब जाके कराची में, पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में उन्होंने ये कहा था कि इस रेशो को बढ़ाएं, मतलब हाई राइज के ऊपर पाबंदी उस तरह न लगाएं, यू हैव टू डेवलप द हैबिटेट एंड ऑल दैट, बट यू कैन नॉट स्टॉप हाई राइज फ्रॉम बीइंग बिल्ट बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आज 250 है तो आप उसी जमीन पर हाई राइज इज द ओनली सोल्यूशन नहीं करते। और अब देखिए कि जी जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये तो है ना इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, कराची जैसे मैंने आपसे कहा कि बाज फिगर्स कहते हैं अबाउट 800 स्लम्स हैं, कच्ची आबादी हैं। दुनिया में कहीं इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है रेगुलराइजेशन, और अभी दूसरे कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में बात करूंगा। तो हमारे पास जो है अबाउट 55% ऑफ कराची इज ऑक्युपाइड बाय द स्लम्स एंड इलीगल हैबिटेट। मुंबई ट्विन सिटी की तो सिस्टर सिटी कहलाते थे, तो उसके बम्बई के आप जाके देखें, उनकी स्लाइटली, हमारी 24 मिलियन आबादी है तो बम्बई की स्लाइटली लेस, लेकिन वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि दे आर एड्रेसिंग दिस इशू इन ए मोर एकेडमिक मैनर, इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर, दे आर एड्रेसिंग दिस इशू। दुनिया में हो ही रही है वो, मतलब उन्होंने IFC ने उड़ीसा और बिहार में सबसे पहला एक मॉडल बनाया था स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का, तो वो सक्सेस हुआ। अब वो मुंबई में इधर वो कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट इट। तो हमारे क्या था कि जी देखें, जब बना कोई शहर, कराची का भी देखें कि जब ये बना अंग्रेजों के दौर का एक मास्टर प्लान था, टाउन प्लान जिसे कहते हैं, लाहौर का भी था। उसके बाद आप जाकर कागजात में जाएंगे, ये फलाने दौर में रिवाइज भी हुआ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया की कि जो वहाँ हो रही हो अच्छी और हमारे कागजों में ना मौजूद हो, वो सब गए। लेकिन टाउन प्लान, मास्टर प्लान, जोनिंग की कोई सैंक्टिटी नहीं है, उसका कोई आपने सुना भी नहीं होगा कि जी ये चीज़ तो से बाहर है, ये अंदर है। सिंगापुर 1965 जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो अगर आप गूगल पे जाएं, शायद मैं दिखाऊंगा आपको, सिंगापुर वाज द वर्स्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड सिटी इन द वर्ल्ड। क्यों? कि ली कुआन यून ने उस वक्त सबसे पहला सिंगापुर का मास्टर प्लान तैयार किया, और मास्टर प्लान तैयार करके जब उसे लॉन्च किया तो ही सेड दिस इज द बाइबल ऑफ सिंगापुर, दिस मास्टर प्लान इज द बाइबल ऑफ सिंगापुर, नोबडी एवर डेयर टच इट। आज भी आप देखें, बाकी आप तो देखते ही हैं कि जो आबादी देखें, 96 स्टोरी बिल्डिंग भी बन रही है, 105 स्टोरी बिल्डिंग भी बन रही है, गली में आपको एक रेत की बोरी नजर नहीं आएगी। इट्स ऑल 3D टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट। तो हमने मास्टर प्लान को डैमेज किया। ये फैक्टर्स मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि जैसे ग्रोथ है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, एक तो जमीन की शॉर्टेज, क्योंकि मदर ऑफ हाउसिंग क्या है, किसके पेट से हाउसिंग जन्म लेती है? हाउसिंग की मदर इज लैंड, उसकी कोख से हाउसिंग जन्म लेती है। तो जब लैंड ही का हम ये हशर कर देंगे तो आबादी जैसे बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ये सारा कुछ, तो उसमें फिर आपको ये सारे इश्यूज तो आएंगे। अब ये जो है ना, मैंने जिक्र किया आपको कि दुनिया की आबादी का जो इशू है, देखिए वैसे आप गौर करें, अबाउट 19वीं सदी के आगाज में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अबाउट 2 बिलियन। अब देखिए कब से दुनिया चल रही है। आपने वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी, पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसमें क्या था कि 19वीं सदी के आगाज में अराउंड 2, मिड में आके तकरीबन 3-4, आज दुनिया की आबादी कितनी है? 8 बिलियन। क्यों? कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर वही होगी तब भी 2 बिलियन का 2% एंड 8 बिलियन का 2% इज डिफरेंट। हमारी जब आबादी 50 मिलियन थी तो 2% ही ग्रोथ रेट ले लें तो इजाफा कुछ और था। लास्ट ईयर ओनली पाकिस्तान की आबादी जो है अबाउट 4.6 मिलियन, 46 लाख इजाफा हुआ नेट बर्थ एंड डेथ्स कोट करके, नेट ऑफ जो ग्रोथ है। और पाकिस्तान जो है इज वन ऑफ द रीजन में भी पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट।
इंडिया एंड बांग्लादेश आर स्लाइटली मोर देन 1%। फिर हमारे जो अभी हाउसिंग शॉर्टेज हम कहते हैं कि जी इतने मिलियन है, इतने बिलियन है, ये देखिए, तो हाउसिंग शॉर्टेज इसलिए कम है निस्बतन। आज हम लोग कहते हैं 12 मिलियन, और ये 12 मिलियन काफी अरसे से हम कहे आ रहे हैं, जबकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज में इजाफा और इंक्रीमेंटल एडिशन टू द हाउसिंग, इसलिए कि रिक्वायरमेंट एक्स है, सप्लाई इज वाई बहुत थोड़ी है, मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख, और वो भी जो कुछ कर रहे हैं ये आबाद और ये लोग कुछ कर रहे हैं, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ी बहुत हो रही। तो इसका मतलब है 4-5 लाख का हम इजाफा जो एग्जिस्टिंग बैकलॉग में हम कर रहे हैं। और जो नई, जैसे बताया आपको कि जो 46 लाख का मतलब क्या हुआ, अगर हम 6% भी आप ले तो तकरीबन 7.5-8 लाख घरों की जरूरत हमने पिछले साल पैदा कर दी। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस इशू अनलेस एंड अनटिल। अब ये देखें आप, वो हैबिटाट है और ये साथ ही कच्ची आबादी है। वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने, उसी जमीन पे कितने लोग बस रहे होंगे। और इसी स्लम में जो हर्नांडो डे सोटो ने कहा, सिटिंग ऑन द लैंड वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स व्हिच हैज नो यूज टू देम एंड नो यूज टू द सोसाइटी एट लार्ज। इसको मैं स्किप करता हूं कि डिफाइन क्या करना है, आप हमें सब पता है, वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन है, ये है वो है। पाकिस्तान में हमारी खुशनसीबी यह है कि कुछ चीज़ों का जिक्र काम हुआ है। मतलब ये औरंगी पायलट प्रोजेक्ट हम प्रोफेसर हमीद का, ये मैंने आज से को 20-25 साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सम इंटरनेशनल स्पीकर वाइल टेलिंग कि जी अर्बन कंजेस्शन और ये रीजनरेशन ऑफ हैबिटाट को डेवलप करने का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल औरंगी उसने पेश किया। उसकी स्लाइड, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसको तो लिटरेचर से जो भी मालूमात हुई होंगी। और हमने उसके बाद से लियारी एक्सप्रेसवे की बातें होती रही, कई बहुत से फैक्टर्स हैं नहीं कर सके। उसके बाद आप ये देखिए, थोड़ा जो अभी काम हो रहा है वो प्राइवेटली एक अखुवत फाउंडेशन वो हाउसिंग कर रही है, लेकिन स्लम रीडेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही, बट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। क्योंकि हाउसिंग में भी उस एरिया को जिसे हम कहते हैं पेरी अर्बन एरिया, नोबडी अप्रोचेस देम। द अखुवत फाउंडेशन उनका जो फोकस है उस पेरी अर्बन एरियाज में। आपने शायद नाम सुना हो KKB4, खुदा की बस्ती, ये जवाद असलम तस्लीम सिद्दीकी थे जब वो शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके ये साथी थे जवाद असलम, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बस US सिटीजन, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए। तो आप फैसलाबाद में जाएं, आई हैड ट्वाइस विजिटेड सफिया होम्स। मतलब कि अच्छी मिसाल भी बहुत उनका होगी, बहुत रेयर होगी, बट कमेंडेबल है। जवाद असलम से मैं कई दफ़ा कहता हूं कि तू इतनी बड़ी जन्नत कमा रहा है कि यू कुड हैव लिव्ड इन अमेरिका। ये उसकी मतलब KKB4 और सफिया होम, फैसलाबाद, कई जगह पे वो गरीबों की बस्तियां वो बना रहा है, और मैंने खुद देखी है, कमेंडेबल, आप गूगल भी कर सकते हैं। थाईलैंड जो है, इसमें एक उन्होंने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कोडी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट उन्होंने किया। क्योंकि जब भी आप इन लोगों को रिहेबिटेट करके कुछ करना चाहते हैं ना, तो इट कैन नॉट बी विद द स्टिक, वो कोई स्टिक का मॉडल नहीं चलता है। यू हैव टू बी, मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, इंसेंटिवाइज देम कि हमने कैसे आपको लेके चल, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। मसलन हमारे ये है कि अगर किसी कच्ची बस्ती में हमने कुछ काम किया था बताऊं, तो वो उनको आपको मनाना पड़ता है 100%। इंडिया में उन्होंने स्लम रीडेवलपमेंट एक्ट और स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई एक्ट के तहत। उनका यह है कि 2/3 ऑफ द हैबिटाट agrees on a proposal, the rest of 1/3 are assumed to have agreed। आपको 100% नहीं करना है। हमारी जो नाकामी हो रही होती है किसी प्रोजेक्ट में, इसलिए कि वहां पे एक माफिया पहले से होती है, कुछ माफिया जिसका वो वोट बैंक है, कुछ लोग और होते हैं, तो वो आपके इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं जाने देते। तो इसमें उन्होंने जो ये डेवलप किया 2/3, फिर ये किया कि औरंगीटांग में जिक्र कर चुका, स्लाइड को स्किप कर जाऊंगा। ये देखिए जो उसने बनाई, ये जो पिक्चर्स थी, अब जाहिर बात है वो बेचारे अख्तर साहब अल्लाह को प्यारे हुए ना। उसके बाद उसकी जो डिसिप्लिन था, जिसमें मैं कोडी का जिक्र करना खास तौर पे चाहता हूँ, कि आप उस कम्युनिटी को उसकी ओनरशिप देते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि यू ड्राइव हाउ टू हैव। देखिए, जब आप किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे, हर आदमी ये तो कहेगा कि जी इतनी गलियों में कंजेशन कर दिया, जनाजा नहीं निकलता है,
लेकिन वो अकेला कुछ सोल्यूशन नहीं ला रहा होता है। तो कोडी का कॉन्सेप्ट ये हुआ था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा था कि हम उनको लेकर चलेंगे और वो ही बताएंगे जी कैसे है। और आप ये देखेंगे आगे मैं बताऊंगा कि जबरदस्त उन्होंने भी काम किया है। ये देखिए, ये डेवलप हुई लियारी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये सफिया होम्स, ये आप जाकर देखें कभी फैसलाबाद में, बेहतरीन 10-10 लाख 8-8 लाख में उसने ये घर दिए। बल्कि सफिया होम जो है सितारा केमिकल्स के तकरीबन साथ ही है। तो सितारा केमिकल्स का प्लांट उनका जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और भी टेक्सटाइल भी सितारा की है। तो उनकी लेबर के इश्यूज थे। मैं हाजी बशीर मरहूम जो हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत अजीम आदमी थे। तो उनके पास गया कि जी आपकी इतनी लेबर है तो आप इसके लिए क्या करते हैं। वो कहने लगे भैया ये मसला तो है, तो कोई दूर से आता है, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने कहा जी ये सफिया होम आपके साथ बन रहा है, इसमें से आप 250 घर आप खरीद लें और वो अपनी लेबर को चाहे तो ऑन रेंट दे दें। हाजी बशीर को समझ आ गई कि एक शटल चलेगी, सारी लेबर को लाएगी, एक शटल चलेगी, उनको वापस पहुंचाएगी, दे विल बी लिविंग इन हैबिटाट। ये जो बनती है ना बस्तियां, इसमें स्कूल भी होता है, सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी जिसे हम लोग कहलाते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन। ये दो चीजें ऐसी हैबिटाट को हम लोग कहते हैं ना दूर है, दूर तो भाई होता ही है, दूर तो होता ही है, लेकिन उस जी मुझे टाइम बताना है आप 2 मिनट्स तो नहीं, मैं तो जल्दी कर लूंगा या आप मुझे 2 मिनट पहले और वार्निंग देती तो मैं आई डू इट, नो प्रॉब्लम। अब ये देखें, ये सफिया होम्स है, ये ट्रांसफॉर्मिंग स्लम्स इनटू डिसेंट हैबिटाट, ये कोडी की मैं मिसाल आपको दी। आप मैं चाहूंगा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उसको आप स्टडी करें। ये कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, उनको इन्वॉल्व करके ताकि फिर वो पूरे रीडेवलपमेंट प्रोसेस में देखिए। अमेरिका में आपने एक चीज सुनी होगी, होम ओनर्स एसोसिएशन, HOA। कोई वो हाई राइज हो या हॉरिजॉन्टल कम्युनिटी हो, उनकी एक एसोसिएशन होती है। दैट एसोसिएशन एंश्योर्स द डिसिप्लिन विद इन दैट हैबिटाट। हमने ये कोशिश की, अच्छा वहां पे डिफॉल्ट कोई नहीं कर सकता, लोन लेते हैं ना जी, वो जो डॉक्टर यूनुस ने ग्रामीण मॉडल में जो कॉन्सेप्ट निकाला था सोशल कोलेट्रल, कोई वो मॉर्गेज नहीं करते डॉक्टर यूनुस जो ग्रामीण मॉडल में सोशल कोलेट्रल के, इफ वन इज डिफॉल्टिंग द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी वोंट लिव हिम लिव दैट कि तुम हमारे आइंदा के लोन लेने के हक को खराब कर रहे हो। तो वो एक सोशल कोलेट्रल जो है ना, वो इससे आप गरीबों में आप जाएंगे तो वो चीजें इस तरह की आपको समझ आएंगी। ये इसकी आप ये देखिए, यही कोडी के तहत एक हैबिटाट थी बिफोर, और ये आप देख रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि होता यह है कि फाइनेंशियल साइड है कि वहीं से हम इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज एंड स्मार्ट सब्सिडीज। गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना है, आप खुद एक लम्हे के लिए सोचे, मैं आगे जिक्र करूंगा। ये तो मैंने बता दिया कि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज ज़हन में जरूर रखिए कि इंडिया की मिसाल में देखता हूं कि जो कम्युनिटी को आप 2-3 चीजें दे देना, मतलब आजकल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब आप किसी कम्युनिटी को डेवलप करें तो उसे वाईफाई नहीं देंगे ना, तो वो बात नहीं बनेगी। कम्युनिकेशन का 90% मसला वाईफाई से हल हो रहा है कि आपके पास सेलफोन है, व्हाट्सएप है एंड ऑल दैट। सो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि जब व्हेन यू प्रोवाइड एनी डेवलप कम्युनिटी एंड प्रोवाइड, यू हैव टू रियली मेक श्योर कि उनको ये एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ। इसमें जो है ना जी, हमने जब इमरान खान साहब की हाउसिंग पॉलिसी बनाई थी तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था, और इसमें हमने 2 प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया था। एक ये वादत कॉलोनी लाहौर। वाद कॉलोनी लाहौर आप लोग देखे हुए गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, 220 एकड़ पर है। लाहौर की पंजाब गवर्नमेंट की एक अर्बन यूनिट है जो इसी अर्बनाइजेशन के इशू को, उन्हीं बच्चियों ने ये पूरी प्रपोजल बनाई 220 एकड़ को। अच्छाई वहां पे ये थी कि जो प्ले ग्राउंड और ये चीजें थी वो कब्जा कोई नहीं कर सका। लोग कम्युनिटी ने, वो जो मैंने कहा ना सोशल कोलेट्रल, कि कम्युनिटी ने किसी को प्ले ग्राउंड, कराची के तो बदनसीबी ये भी रही है ना कि
कि उस कम्युनिटी में प्ले ग्राउंड में हमने शादी हॉल बना दिए, तो जो कुछ भी किया उसमें बात कॉलोनी का ये था मॉडल। उस पर इन्होंने ये डेवलप किया उसको कि जिस सब लोगों को घर भी देंगे, हाई राइज भी होंगे, लो राइज भी होंगे, हॉरिजेंटल भी होंगे, और कुछ पैसा भी मिलेगा। एंड ओवरऑल उस वक्त के लिहाज से कुछ 3 साल पहले जो स्कीम थी, 50 बिलियन रुपीस सरप्लस जनरेट होना था भाई, जो बाकी घर जो फालतू होंगे जो बेचेंगे। ओके, तो ये जो है ना 220 एकड़ पे, लेकिन वो बाहर आपको पता हमारी सियासत का जो इमरान खान साहब बहुत सी चीजें सपोर्ट, यू नीडेड सपोर्ट फ्रॉम दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। देखिए इस सॉरी ये वाद कॉलोनी की सारी स्कीम वगैरह है, आपको प्रेजेंटेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको दे देंगे। ये आपने दूसरी चीज के बाद मैं अपना टॉपिक फिलहाल खत्म करता हूं। कराची में आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर, ये 332 एकड़ एरिया। आरिफ हसन साहब बहुत अजीम आदमी हैं, स्लम के कराची में एक्सपर्ट है, द ओनली पर्सन हु हैज रिटन ए बुक आल्सो ऑन कराची एंड स्लम्स, और बहुत एकेडमिक भी, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, मैं तो उनका मुरीद हूँ। तो वो उन्होंने और मैंने मिल के इसको स्टडी किया। 332 एकड़ पे आप ये गौर कीजिए पोटेंशियल को। गुरु मंदिर, जमशेद रोड, मार्टिन रोड, जहांगीर रोड, इस सॉर्ट ऑफ ए ट्रायंगल। हमारी प्रपोजल ये थी कि इसके तीनों कॉर्नर्स पे अगर हम 10-10 एकड़ के आउटलेट मॉल बना दें। आपको पता है अमेरिका में आउटलेट मॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। 10 एकड़ पे कराची में कोई भी मॉल नहीं है। तो 30 एकड़ का हमने, क्योंकि वो जो एरिया बिजनेस होगा उसमें आपने सब्सिडी देनी नहीं है, उनसे मार्केट प्राइस पे हमने ले रहे, उससे जो हम लोग कहते हैं कि क्रॉस सब्सिडी, कि हाई एंड पॉपुलेशन के एरिया से लो और लो एंड पॉपुलेशन वाले को दो, फ्रॉम हैव्स टू हैव नॉट्स। तो वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ हुआ। फिर चीफ मिनिस्टर साहब से मैं दो दफ़ा मिला, बट एज यू नो कि वो एक तो कुछ लोगों का बड़ा हॉस्टेज वोट बैंक है, उसकी वजह से वो लोगों ने जो बेचारे, उनकी पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करता, बट वी ऑल नो उनको वो उसी हाल में ही ठीक लगते हैं कि वो रोज अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए जी आ जाए, तो वो एक हॉस्टेज वोट बैंक है। नोबडी सपोर्टेड। अभी जैसे बताया ना कि मुंबई में स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, स्लम रीडेवलपमेंट एक्ट के तहत काम हो रहा है, और कई बस्तियों में एक चीज़ जो उसकी अहम है उनमें कि मार्केट बेस्ड है। एक डेवलपर जो है वो कहता है कि जी उस बस्ती में जाके जी मैं यहाँ पर आपको 2 कमरों का अपार्टमेंट भी दूंगा, मैं आपको ये भी दूंगा, और यहाँ से आप शिफ्ट होंगे जब तक ये नहीं बनता 3 साल का किराया भी दूंगा, कहीं और जाके आप रहेंगे, जब यहाँ से हटाएंगे। तो वो जब सब कुछ मिल रहा था और आदमी को यह था कि 2 साल बाद मैं 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहूंगा, तो जो डेवलपर अपनी स्कीम में सबसे ज्यादा वोट ले लेता है उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है। इट्स ऑल मार्केट बेस्ड। तो उसकी वजह से वहां पे ये प्रोसेस जो है, और वो जैसे मैंने कहा कि 2/3 हैव टू एग्री, नॉट ऑल। कि मुंबई का आपसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि मुंबई में इस वक्त आप स्टडी करें जो लोग के पहले 2 प्रोजेक्ट हुए थे उड़ीसा और बिहार में, वो आईएफसी ने अपनी टेक्निकल असिस्टेंस पे किए थे, वो मॉडल बन गए। आईएफसी की जरूरत क्या होती है, मैंने बात कॉलोनी के लिए आईएफसी को इनवाइट किया था, दे वर विलिंग टू गिव अस द मॉडल, इसलिए कि मैं या एजाज साहब बैठ के बनाएंगे ना, लोग कहेंगे जी इनका को अपना खांचा होगा, ये स्कीम इन्होंने बनाई है। उन्होंने आईएफसी से बनवाई इंडिया में, कोई खांचा नहीं आ सका, कोई ब्लेम नहीं आया, और मार्केट बेस्ड था। तो उसके बाद वो चलना शुरू हो गया। मुंबई को डेवलप कर रहे हैं, और कई जगह आपको पता पाकिस्तान में भी, इट्स नॉट ओनली कराची, बट कराची इज द वर्स्ट हिट बाय द अर्बन माइग्रेशन। कराची की आबादी तो वही एक जेनरिक है 2%, बट एस्टिमेट है कि 3 to 4% ऐड होती है बिकॉज ऑफ मैसिव अर्बनाइजेशन। सो पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5 to 6%। ये आप वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉथ में जाएं तो 30 साल बाद कराची की आबादी 48 से 50 मिलियन होगी। यहाँ पे कराची में अच्छी खबर यह है कि उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होगा, क्योंकि लोगों का ट्रैफिक जैम होगा, आदमी नहीं चल पाएंगे सड़कों पे, उन्हीं का ट्रैफिक जैम होगा। ये जो है ना वर्ल्ड बैंक वाला के मॉडल हैं, इस पर आपको जो चाहेगा वो देख सकता है। सिंगापुर
ये देखिए 1965 60 जब आज़ाद हुआ, और ये देखिए आज। और इसकी सिर्फ यही नहीं है कि 90 स्टोरीज 80 स्टोरीज, वो बड़ी साइंटिफिक, जिसमें टाउन प्लानिंग का रोल था मास्टर प्लान में, साइंटिफिक अंदाज से बनाया है कि जी हाई राइज हैं इन सर्कुलर शेप, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो जो हाई राइज है सर्कुलर शेप में, वो हवा आती है, हवा उनसे रुकती है, नीचे लो राइज बना दी है। जब वो वेंचरीज में से हवा गुजरती है तो वो रुकती है, आगे लो राइज है, तो वो घर जो है उस विंड से इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे फिर वो रुकावट होती है अनदर, जिसपे ग्राउंड में सिंगापुर में आप देखें बच्चे खेल रहे होंगे ना, उस ग्राउंड के नीचे हैवी वाटर रेजरवायर्स होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंगापुर क्लेम्स, अभी मैं लास्ट टाइम गया था, तो वो कहते हैं नॉट ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर इज वेस्टेड इन सिंगापुर, नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर। सेकेंड चीज, उन्होंने कहा कि 86% ऑफ द वाटर इन सिंगापुर इज नाउ बीइंग रिसाइकल्ड, 86%। और ये बड़ा आसान है, हमारे घरों में जो टॉयलेट में पानी यूज होता है ना जी, इट्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल वाटर वी यूज। टॉयलेट फ्लशिंग के लिए आपको नेस्ले वाटर नहीं चाहिए। मैंने अपने घर में ये सिस्टम लगाया हुआ है, शावर का किचन का पानी है वो टैंक में इकट्ठा होता है, उसको टॉयलेट फ्लशिंग के लिए, गार्डन के लिए, इसमें अब और उस पर हम काम कर रहे हैं कि सैंड फिल्टर्स और बिटुमेन फिल्टर्स आके उसकी क्वालिटी। लेकिन नहाने में पानी में क्या गंद आता है, किचन के पानी में क्या गंद आता है, तो सैंड फिल्टर ही उसे साफ कर सकता है। सो वी हैव टू रियली बी वर्किंग इन डिजाइन ऑफ द हाउसिंग के एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग, वाटर कंजर्वेशन हाउसिंग, ये दो चीजें आपको सिस्टम में बिल्ट इन करनी है। आई थिंक मुझे पता है जी, आप मुझे धक्का दे देंगे लेकिन मुझे लग रहा था कि जी लोग शायद सुन रहे हैं तवज्जो से। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। Thank you so much, Mr. Zegam Rizvi, Chairman, National Platform for Housing Research, Ambassador, Global Housing Foundation, USA, for sharing your thought-provoking and insightful views with us. It was our pleasure listening to your insightful perspectives. So now I would request Mr. Junaid Imam, MD, Pakistan Software Export Board, to please join us on the stage and shed some light on PropTech and IT exports through freelancers, golden opportunity for Pakistan. Ladies and gentlemen, please give him a warm welcome on the stage. जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरा ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कितने लोग हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी पिच जो अगले 5-7 मिनट में ऐसी रखूँ जो प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हो। मेरा काम फेडरल गवर्नमेंट में एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो ओवरऑल पाकिस्तान में हो रही है, और दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक बड़ी की चीज़ है सस्टेनेबिलिटी। हम सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। उसकी वजह एक ये है कि अभी जैसे आपने फ्लड्स देखे, जो एनवायरमेंटल हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक रास्ता नज़र आ रहा है जिससे हम सस्टेनेबिलिटी लेके आए अपने एनवायरनमेंट में भी, और ये जो एनवायरमेंटल चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें हम अपना एक पॉजिटिव रोल कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जो रियल एस्टेट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में, और एंड इट्स ग्रोइंग। अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस आ चुकी हैं, और ये रियल एस्टेट सेक्टर टेक्नोलॉजी को बहुत सारे सेगमेंट्स में यूज़ कर रहा है। तो हम अभी पीछे हैं दुनिया से। ऑन वन हैंड ये एक डिसएडवांटेज है कि आप दुनिया से पीछे हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। वी कैन लुक एट डिफरेंट यूज़ केसेस ग्लोबली, दुनिया में जो हो रहे हैं, लोग जिस तरह टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, हम भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करें। हमें कस्टमाइज़ करना होगा अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है रियल एस्टेट के अंदर, जो प्रॉपर्टी के अंदर, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इमेंस हैं और वो ग्लोबल हैं। चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की एफिशिएंसी हो, सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो,
ये हर एस्पेक्ट के अंदर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस आप एक इस चीज़ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप ग्लोबल जो बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज हैं, सो आपको टॉप 10 में सिर्फ शायद एक नज़र आए, अरामको जो सऊदी अरब की है, जो कि नॉन टेक कंपनीज हैं। अब सारी टेक कंपनीज आ गई हैं। सो सिमिलरली रियल स्टेट में भी जो अब अगली जंप है, अगर जो रियल स्टेट बिल्डर्स हैं, मार्केटिंग के हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो वो जंप नहीं आएगी। देयर विल बी सम ऑर्गेनिक ग्रोथ जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, मार्केट ड्रिवन होती है, लेकिन अगर हमने इसको एक और लेवल पे लेके जाना है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए बगैर जो है वो हम नहीं जा सकते। एक आध मैं एग्जांपल दूंगा जो टेक्नोलॉजी करने वाली है आगे, और वो डिसरप्शन है और हमें पहले से उसको अपने आप को अडेप्ट करना होगा कि उस डिसरप्शन को हमने कैसे एडजस्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, बट अब एआई मशीन लर्निंग के साथ मैंने एक अपना घर बनाना है, मैं एक टूल को अपनी रिक्वायरमेंट दूंगा जो मेरी विश लिस्ट है। मुझे घर के अंदर लाइटिंग कैसी चाहिए, मुझे रूम्स छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, मुझे मैनूवरिंग कैसी बीच में चाहिए, सनलाइट क्या चाहिए, मेरा बजट क्या है। ये सारी चीज़ें देने के बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें एक ऐसा डिज़ाइन दे देगा जो बेस्ट फिट होगा हमारी नीड के लिए। वो BOQ भी जनरेट कर देगा, वो जो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए नीड्स हैं वो सारा कुछ जनरेट कर देगा। सो एक सिंपल टूल आपको ये काम कर देगा जो अभी आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑल टुगेदर रिप्लेस हो जाएंगे या ये कल होने वाला है, ये होगा बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, अब आप आगे टूल्स आएंगे जो कि डेटा एनालिटिक्स की बेस पे प्राइसिंग, रेंटल प्रोजेक्शन या इन्वेस्टमेंट्स किस तरह करनी है आपने, जो कि अभी ह्यूमंस ड्राइव कर रहे हैं, ये होने वाला है आगे। कि बेसिकली वो आपके पास टूल्स होंगे जो आपको कराची के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने के लिए आपने किस तरह चलना है वो आपको सारा टूल बता देगा इटसेल्फ, और रीजनेबली एक्यूरेट होगा क्योंकि वो फैक्टर्स बहुत सारे टेक इन कर रहा होगा, अकाउंट कर रहा होगा। सो दैट्स वन एरिया जो कि डिसरप्शन लाएगा। द अदर पार्ट इज आई थिंक एफिशिएंसी का पार्ट। अभी ऑलरेडी बिल्डिंग्स में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस के साथ हम अपनी एनर्जी की यूजेज को इंटेलिजेंट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉस्ट के फैक्टर भी हैं। जब हम इंटेलिजेंस लेके आते हैं तो थोड़ी कॉस्ट आती है। सो अभी वाला मॉडल ये है कि अगर एक घर है, आपने उसको स्मार्ट होम लेट से बनाना है, तो आपने सेंसर्स लगाए, एक्चुएटर्स लगाए और साथ में एक कंट्रोल सिस्टम बनाया जो आपकी नीड्स के लिहाज से घर की लेट से जो एनर्जी की नीड्स है उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपने इंटेलिजेंस एक कंट्रोलर घर में लगाया है हर घर के लिए, उसकी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। बेसिकली मेन ड्राइवर वो होता है, सेंसर्स एक्चुएटर्स की कॉस्ट नहीं होती। बट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में भी अगले साल 5G लॉन्च हो रहा है। सो 5G के साथ ये होगा कि जो आपके घर के सेंसर्स हैं वो आपके घर के अंदर कोई कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, वो ऑन 5G रिमोट एक जगह एक इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। सो फॉर थाउजेंड्स ऑफ होम्स देयर इज वन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एट द बैक एंड। सो आपकी कॉस्ट शेयर हो गई। सो ये जो इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और जो स्मार्ट घर के लिए सॉल्यूशंस हैं वो उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली एकदम से लो हो जाएगी। सो अगर हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे और हम अपनी ट्रेडिशनल वे में बिल्डिंग के डिज़ाइंस और कंस्ट्रक्शन और सारा इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये जो टेक्नोलॉजी से ये जो बेनिफिट आया कि इंटेलिजेंस इतनी सस्ती हो गई, आपकी स्मार्टनेस सस्ती हो गई, अगर हम उसको नहीं लेके आएंगे तो अगेन ये बायर के लिए भी एक डिसएडवांटेज है और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं और जो सेलिंग हैं उनके लिए भी हैं। सो टेक्नोलॉजी अगेन आपके लिए एक फंडामेंटली जो बिल्डर्स हैं कंस्ट्रक्शन के लिए एक चेंज लेके आ रही है, ऑलरेडी इसका यूज़ हो रहा है। देन सेल्स एंड मार्केटिंग है। सो वी नो कि अब आप थ्रू AR VR आपने किसी को बिल्डिंग में फिजिकली ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सारा वर्चुअल टूर, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आप मैनेज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू टेक इट टू द कस्टमर टू द बिल्डिंग इटसेल्फ। सो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और फिर इसके अंदर अगेन जब आप ये टूल बेस करते हैं तो आप UX UI के पैरामीटर्स भी लेके आते हैं, आप
इमोशनल इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स भी लेके आते हैं और कस्टमर की नीड के लिहाज से वो टूर्स भी प्लान करते हैं. सो आपकी सेलिंग और मार्केटिंग फंडामेंटली चेंज हो जाती है. सो हमें ट्रेडिशनल वे ऑफ सेल्स और मार्केटिंग उससे बाहर निकल के अब इन टूल्स को भी यूज़ करना है. और अगेन बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं. बिल्डिंग मेंटेनेंस की है, सिक्योरिटी की है. अब आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सो इट्स जस्ट नॉट कैमरा. डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिक्योरिटी नीड्स यू कैन यूज ड्रोन्स एज वेल. और अगेन जिस तरह शेयर्ड इंटेलिजेंस होती जा रही है, इनकी कॉस्ट कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी आने वाले टाइम के अंदर. तो अगेन आपकी बिल्डिंग की ओवरऑल जो आपकी सेलिंग प्राइस है या जो उसकी वैल्यू है, ये टेक्नोलॉजी के साथ आप चीज़ें लेके आएंगे तो आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी. सो जो आगे अब जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं और लोग ग्लोबली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, सो कॉस्ट थोड़ी है इसकी, बट इसकी जो वैल्यू एडिशन है आपकी बिल्डिंग के अंदर और आपकी ओवरऑल जो सेल्स साइकिल है उसके अंदर वो सिग्निफिकेंट है. सो हम सबको भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी को स्टडी भी करना चाहिए. जो एक गैप है मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के पीपल जो हैं वो एक गैप है. टेक्नोलॉजी वाले अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं है इस सेक्टर के साथ. बट आई थिंक मैं इस जो कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इसको होस्ट किया. और ये एक शायद एक पहला कतरा है कि ये अवेयरनेस टेक के लोगों में भी और जो इस रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनको भी ये अवेयरनेस की टेक्नोलॉजी जो है वो उनको क्या बेनिफिट दे सकती है, ये दोनों मिलके बैठें. और एक की चीज़ जो मैं टेक्नोलॉजी के लोगों को कहूँगा या जो बिजनेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर ये देखा जाता है कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है. तो अगर आप रियल एस्टेट को देखें तो जो किसी भी मुल्क की जीडीपी का बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है. और अगर मैं सिर्फ लास्ट ईयर प्रॉप टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट देखूं तो ओवर $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर की है लोगों के ने. सो वो ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है. सो टेक के लोगों ने भी इस सेक्टर को सीरियसली अब देखना है क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल सॉल्यूशंस, ग्लोबल सर्विसेज मौजूद हैं. हम नहीं करेंगे तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि ग्लोबल प्लेयर्स आपकी मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे. मैंने जिस आर्किटेक्ट की और टूल की एग्जांपल दी, अगर हम खुद इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे सो देयर बी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होंगे जिन्होंने बगैर पाकिस्तान में आए हुए टूल को कस्टमाइज कर दिया होगा पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से, और लोकल प्लेयर्स को यूज़ किए बगैर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे. सो पाकिस्तान के लिए भी ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी और लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी होगी. सो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए और इस सेक्टर की ग्रोथ और इस सेक्टर के अंदर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें. और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नई क्रिएट होने वाली हैं उनको बेनिफिट ऑफ टेक पीपल एंड फॉर द प्रॉपर्टी सेक्टर, इन सब को हम मिल के लेके आगे चलें. एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड कि टेक और प्रॉपर्टी के लोग मिल के जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें. थैंक यू जी. Thank you, Junaid Imam, for sharing insights with us. Now we would like Jahan Ara, Pakistani businesswoman, ex-President Pasha, now running a Catalyst Lab, a startup accelerator and women leadership program. She will be talking about role of tech startups in gig economy. PropTech is next. Please welcome Jahan Ara. थैंक यू. आई डोंट थिंक आई शुड टॉक अबाउट द गिग इकोनॉमी. ऑडियंस जो है ना मेरे ख्याल में उसकी दिलचस्पी इस एरिया में नहीं है. आफ्टर व्हाट जुनैद हैज सेड मेरे ख्याल में बहुत कम रह गया है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. एक तो मेरा सवाल यही था जब मुझे इनवाइट किया गया कि आप प्रॉपटेक के कॉन्फ्रेंस में बोले, मैंने कहा मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ प्रॉपर्टी के बारे में. मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए छोड़ी थी. उसके अलावा यू नो there's very little I know about the PropTech industry other than कि automation हो रहा है. मैं स्टार्टअप्स को देखती हूँ कि उस एरिया में वो भी देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं. टेक कंपनीज हमारी जो हैं वो भी देख रही हैं कि काफ़ी
opportunities हैं to help the real estate sector. आप देखें अगर ज़मीन.com का तो मुझे एक एग्जांपल मालूम है, उसके थ्रू आप उन लोगों ने कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर ली है. तो आई थिंक वेदर यू आर अ कस्टमर बायर ऑफ रियल एस्टेट, वेदर यू आर अ सेलर ऑफ रियल एस्टेट, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं टू हाईलाइट योर प्रोडक्ट एंड फॉर कस्टमर्स टू शॉप एंड कंपेयर. ये कंपैरिजन जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया है कि अगर मैं सपोजिंग मैं ढूंढ रही हूँ, अगर ऑफिस ढूंढ रही हूँ या घर ढूंढ रही हूँ, तो आई एम एबल टू लुक एट द डिफरेंट एरियाज ऑनलाइन ही जाके. और फोन और कंप्यूटर की वजह से ये बहुत आसान हो गया है कि आप कंपेयर करें कि किस एरिया में क्या चीज़ अवेलेबल है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और फिर कांटेक्ट रिमोटली भी कर सकते हैं, उनके और डिटेल्स मालूम कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, मगर एज जुनैद सेड, मेरे ख्याल में बातचीत बिटवीन द टेक सेक्टर एंड द रियल एस्टेट सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए. और ऑटोमेशन जो घर में अब लोग ढूंढ रहे हैं, नाउ यंगर पीपल आर बिकमिंग ओनर्स ऑफ रियल एस्टेट, तो उनको बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड चाहिए होती हैं. अब मेरे जैसे लोग जो इतने यंग नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें उठ के लाइट नहीं बंद करनी हो या हीटिंग ऑन नहीं करनी हो, या अगर कंट्रोल्ड हो कि इतनी देर बाद वो बंद हो जाए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, या मैं कमरे में एंटर हूँ तो लाइट खुद ऑन हो जाए. ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो होती हैं, होटल्स वगैरह में आप जाएं तो अभी होनी शुरू हो गई हैं. तो दीज आर थिंग्स दैट आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ अ रोल टू प्ले. और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो सकती हैं जो फिलहाल अभी नहीं हो रही हैं. तो अगर टेक सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर बात करें मिलके, इंस्टेड ऑफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यहाँ तो नॉलेज मेरे ख्याल में जो जैगम साहब नॉलेज में, मेरी तो इंटरेस्ट ये होती है कि अगर वो कंटिन्यू करते और मुझ जैसे कोई यहाँ नहीं लाते, तो देयर इज सो मच लर्निंग टू बी हैड बिकॉज ही हैज वर्कड ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड ही इज सीन के क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या चीज़ें और हो सकती हैं, क्या चीज़ बेनिफिट कर सकती है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कराची, जहाँ इट रियली इज़ अ नाइटमेयर समटाइम्स के आप कुछ भी करना चाहें आपकी अपनी प्रॉपर्टी के साथ या प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. और अगर आप कोई स्कूल या कोई ऐसी चीज़ पे काम करें तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आई थिंक ऑटोमेशन का रोल बहुत है, टेक का रोल बहुत है, मगर ये इट्स really important that the real estate sector and the tech sector sit down and figure out कि किसका क्या रोल है. और टेक सेक्टर मेरे ख्याल में बहुत से एरियाज में पहले भी काम कर चुका है. फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत पहले रेजिस्टेंस थी, बाहर के प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे जुनैद ने कहा, बाहर से रेडीमेड सॉल्यूशंस आ जाते थे, यहाँ काम ही नहीं करते थे बिकॉज वो दे वर मेड फॉर मच स्मॉलर बैंक्स, और यहाँ पे बहुत लार्जर बैंक्स हैं सर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो महंगे सॉल्यूशंस बैंक्स खरीद भी लेते थे और फिर यहाँ इस्तेमाल नहीं होते थे. तो आई वुड नॉट लाइक टू सी दैट हैपन टू द रियल एस्टेट सेक्टर, इसलिए कि यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो अगर मिल के बात करें और मिल के डेवलप करें कुछ सोल्यूशन जो आपके लिए वर्केबल हो, अफोर्डेबल भी हो, तो इट वुड बी रियली गुड. तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसलिए कि मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन और लोगों का ज़्यादा हो सकता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you, Nara, for your insights and viewpoint. Rightly focus on the tech and the real estate industry collaboration opportunities. Thank you for sharing that. Now we would like Mr. Architect Naki Ejaz, CEO and founder MR. He will be talking about prop tech innovations, visualization services, AR, VR, MR, metaverse and beyond. Please welcome Architect Naki Ejaz. अस्सलाम वालेकुम. आप प्रेजेंटेशन चलवा दीजिएगा, फिर मैं बातचीत कर लेता हूँ.
Assalamu alaikum again. My name is Mohammad Naki Ijaz. By profession, I'm an architect, and what we do at work is जो कि आजकल काफ़ी सारी कंपनीज करना शुरू हो गई हैं. तकरीबन 3 से 4 साल पहले we were one of the pioneers when it came to using AR and VR in the real estate industry. So हम लोग जो एक्चुअल में फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट है, वी प्रेडिक्टेड इट बैक इन 2018 कि AR और VR जो है वो टेक्नोलॉजी को ओवरटेक कर लेगा, स्पेशली इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज वेल, एंड सिंस देन वी हैड बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. सो being an architect and being the founder of a tech based company, our goal has always been कि जो एक गैप हमें हमेशा से फील होता था between what an architect plans and what an end customer understands, because eventually there's a huge number of people जो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी घर बनाने पे लगा देते हैं, but at the end of the day they don't even know how their house is going to look like. So अभी जब हम देखते हैं कि there is a lot of companies who are doing AR and VR, it means कि there is adoption of it. So हमें उसमें बहुत अच्छा लगता है. So we since we started तकरीबन 2-3 साल पहले हम लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शुरू किया AR और VR को इस्तेमाल करना, एंड सिंस रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट 1 year हम लोग मेटावर्स को रियल एस्टेट से लिंक भी कर रहे हैं. And why metaverse, I'll also come to that, but just briefly telling, so we started off with providing real estate on-site visualization through augmented reality, and of course आपके नक्शों के ऊपर जो 3Ds नज़र आते हैं, we started doing this 3 to 4 years ago. And of course हम लोगों ने VR में local vendors को connect कराया, मसलन किसी का फर्नीचर, किसी की टाइल किसी बिल्डर के फ्यूचर अपार्टमेंट में लग सकती है और वहाँ से बिक भी सकती है, एंड उस सब को एक प्लेटफॉर्म पे ला के अगर एक बंदा अपना पूरे का पूरा सोसाइटी को या प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहता है या करवाना चाहता है तो वो चीज़ मुमकिन थी. अब इस चीज़ को हम लोगों ने फर्दर पिछले 1 साल में मेटावर्स के साथ लिंक करना शुरू किया और वर्चुअल रियल एस्टेट यानी वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे हम आ गए, और मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करता हूँ. एज वी ऑल नो कि जिस तरह एक जूम का मीटिंग रूम होता है, हम लोग कुछ पैसे देके उसको बुक करते हैं फॉर अ मीटिंग, इस तरह फ्यूचर में जितनी भी मीटिंग्स हैं आपकी वर्चुअल रियल एस्टेट के अंदर हुआ करेंगी, और उनको किसी ने बनाना भी है. अगर जिस तरह मेरे से एक पहले स्पीकर ने बात की कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा. सो we are working on creating those virtual platforms where multiple users, multiple people can come in and interact with each other. वो आपके as simple as virtual gyms हो सकते हैं जहाँ पे कोई योगा इंस्ट्रक्टर अपने बाकी लोगों को सिखा सकते हैं. They can be virtual stadiums, virtual games, etc. एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा फूड पांडा की. It's they have a big operation in Pakistan as well, and when they have to pitch themselves to their new hirings or employees, or when they have to tell the rest of the world how they're doing it in their Karachi office, they just do it virtually just by sending a link that can open anywhere, and then people can see what's happening around. My point being that these virtual platforms are the future of the real estate because they help understanding of real estate better. इससे जिस बंदे ने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक जगह लगानी है वो भी आसान हो जाती है, और किसी ने अगर किसी जगह के बारे में समझना है वो भी आसान हो जाती है. एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग दिस फॉर हेरिटेज इज वेल. हमारे बिकॉज आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, हमारे टेक्सला के पास, लाहौर के पास बहुत से एरियाज में इतनी ऐसी साइट्स हैं जिनका दुनिया को नहीं पता. इफ़ वी स्टार्ट ब्रिंगिंग दोज अप ऑन वर्चुअल मीडियम्स के कोई बंदा यूके में बैठ के भी ये जान सकता है कि पाकिस्तान में कहाँ पे रिलीजियस या हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके बारे में कैसे किसी को ओरिएंटेशन दी जा सकती है. सो दैट्स अ वेरी दैट्स गोइंग टू इनफैक्ट हेल्प आवर टूरिज्म एज वेल. सो हम लोगों ने उस चीज़ पर काम शुरू किया. So, of course, the architects and construction builders can take use of it, जिस तरह हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, but now everything is and has to shift to metaverse, और even आपकी जो normal websites हैं वो कुछ अर्से में आपकी websites भी metaverse पे आना शुरू हो जाएंगी. These are just few of the reasons. जो green में है वो real estate के लिए हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पिंक में हैं वो मेटावर्स के लिए हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये ग्राफ बहुत छोटा होता था जब 4 साल पहले हमने शुरू किया. दिखाने का मकसद ये है कि द वर्ल्ड इज ऑलरेडी डूइंग इट एंड वी हैव टू स्टेप इनटू इट, अदरवाइज समवन एल्स विल. अगर हम नहीं करेंगे कोई और कंपनी आके हमारे ही मुल्क में ये चीज़
करना शुरू कर देगी. लास्टली बिफोर आई क्लोज माय प्रेजेंटेशन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ नई प्रॉपर्टी बनाने की बात ना करें. लेट्स से जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोगों ने रेनोवेट करना है, वहाँ पर हम लोग मिक्स्ड रियलिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकली नहीं लेकिन सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर इंटरैक्शन. एंड जो मार्केटिंग आपकी हो रही है फ्यूचर में होनी ही सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स में और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे होनी है. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट वन ऑफ द स्पीकर्स मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, digital twin concept. Is anyone aware with the digital twin? So basically what happens is कि आपका एक real physical building किसी साइट पर मौजूद है और एक उसका digital model मौजूद है. आप अपने कैमराज, ड्रोन एटसेट्रा की मदद से उसको मर्ज कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स कि क्या वो वाकई ड्राइंग के मुताबिक बन रहा है या नहीं बन रहा. तो ये जो चीज़ है ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो कंपनीज करती हैं उनको बहुत फ़ायदा देती है. लास्टली हम लोगों ने एक नया टूल रिसेंटली लॉन्च किया है. वांटेड कि आप सब लोग बैठे हैं, आपसे ये भी डिस्कस किया जाए. सो इट्स अ डुअल स्क्रीन टूल जो कि फ्यूचर रियल एस्टेट या रेनोवेशन प्रोजेक्ट समझने में, अंडरस्टैंड कराने में बहुत इजी होता है. ये दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी हार्डवेयर. आप सिंपल विंडोज़ कंप्यूटर्स पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन जस्ट नेविगेट अराउंड द अपार्टमेंट. दिस इज़ माई team behind the concept. I being the founder, my co-founder is sitting there making the video. We are like 30 people, young team, and the best part is हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे लाके नौकरियाँ देंगे, तो वो हमने इस्लामाबाद में फॉरेनर्स को दी हुई हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Architect Naki Ijaz, CEO Mimar, for the insightful presentation. Now we'll be having a very exciting panel discussion on real estate investment trust, present and future, an exciting journey. So my team is setting up the stage for the panel discussion. The esteemed panelists of the session are Mohammad Ijaz, CEO Arif Habib Dolmen REIT, Mr. Ali Asgar, CEO TPL REIT, Mr. Umar Ghani, CEO Veritas. And I would request Mr. Naeem Ilyas Khanani to moderate this session. So ladies and gentlemen, please give this galaxy of intellectuals a very warm welcome on the stage. Over to you, Mr. Naeem. Request Naeem Lakhani Saab to join, please. I would like to introduce myself. My name is Naeem Khanani. By profession, I'm an electrical engineer. I'm on board of Arif Habib Dolmen REIT, and I'm on board of Fahim Nanji D'Souza Consulting Engineer, CEO Magna Engineering, and Chief Operating Officer EasyL Tech International Private Limited. आज का ये सेशन स्पेशल ट्रैक है रीट पे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आबाद की सीनियर लीडरशिप इज़ हियर. और रीट के आज जो चैम्पियंस हैं जो पाकिस्तान में, वो सब मौजूद हैं. मोहम्मद एजाज साहब, CEO आरिफ हबीब डोलमेन रीट. आरिफ हबीब डोलमेन रीट ने पहली रीट जो है वो डोलमेन आरिफ हबीब डोलमेन रीट की, विच इज़ रेंटल रीट, और अभी रिसेंटली डेवलपमेंट रीट पाकिस्तान की 2022 में दिसंबर में, वो भी डेवलपमेंट रीट मार्केट के इस तरह के रिस्पांस के बावजूद भी ओवर सब्सक्राइब हुई, तो रीट की एपेटाइट नज़र आती है. आज उनके साथ हमारे साथ अली असगर साहब हैं. अली असगर साहब इज़ हेडिंग TPL रीट. इनका TPL रीट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रीट्स में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे. हमारे साथ जो हैं वो उमर गनी साहब हैं. उमर गनी साहब इज़ रिप्रेजेंटिंग वेरितास रीट मैनेजमेंट कंपनी, और वो भी बताएंगे कि वेरितास में वो क्या कर रहे हैं. हमने इस पैनल पे रहीम लाखानी साहब को स्पेशली बुलाया है. रहीम लाखानी साहब इज़ रिप्रेजेंटिंग विजन कैपिटल लिमिटेड, और ये भी NBFC और रीट हैं. और इनको स्पेशली बुलाने का मकसद जो इसकी लीगैलिटीज़ हैं रीट्स की, उस पर डिस्कशन है.
प्लस ये भी देखना है कि ये सारी रीट्स जो अभी तक हो रही हैं ये सब बड़े कैप वाली रीट्स हैं, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। अगर आबाद के मेंबर्स 500 मिलियन, 50 करोड़ की या 75 करोड़ की या 1 अरब की रीट करना चाहें तो आज वो डायनामिक्स हम समझेंगे। तो मैं नाउ आई रिक्वेस्ट असगर साहब टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन और टीपीएल रीट को उसका टीपीएल रीट जो है इस वक्त क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है। सो ब्रीफ इंट्रो विद योर ऑर्गेनाइजेशन इंट्रो। So with TPL REIT currently post sanitization of REIT regulations and इसमें SECB का बड़ा रोल रहा है and एजाज साहब ने भी काफ़ी इसमें हमारे साथ contribute किया है. So we have launched our first development REIT last year and it has 3 properties from high-end mixed-use residential to a technology zone to a master plan community where the goal is जैसे ज़ेगम साहब ने identify किया, so we need to reduce, in one words, we need to reduce the carbon footprint. People don't need to go or travel much for their work, and addressing all this energy conservation and modern technologies, bringing in prop tech element into it. So this is the first step, and we have closed this year with initial fund size of 18 billion. And progressing from there. And aim is to diversify this. आपने recent भी देखा होगा, so REIT regulation allows for you can bring in more and more real estate, whether it's commercial, whether it's infra, into this fold. And it is by and large is unlocking of capital potential. You can hit the market, you can raise the capital. This is the right structure, tested structure across the developed world. So that's it. Thank you. थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट मोहम्मद एजाज कि आप बताएं उस ऑडियंस को कि रीट है क्या भला और इसका क्या एडवांटेज है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। ओवर टू एजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फारिस हबीब डॉल्मेन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड। मेरे सामने मेरे बहुत से असातिज़ा मौजूद हैं, अल्ताफ़ भाई, और मैंने इन सबसे थोड़ा काम सीख के हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम बिजनेसेस हैं जिनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान में आपको मिलता है। अच्छा कारोबार करने के लिए कहते हैं कि 4 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत रोबस्ट होना चाहिए और बहुत प्रूडेंट होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो एक डिसिप्लिन और एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को फ़रोग दे। सेकेंडली, आपके पास एथिकल और स्किलफुल मैनेजमेंट होनी चाहिए। थर्ड, आपको एक्सेस होना चाहिए फॉर कैपिटल रिस्क, उसकी मदद शामिल हाल होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको सस्टेनेबल बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का जो मैं बिजनेस फ्रेमवर्क देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम बिजनेस सेक्टर्स हैं जहाँ आपको एक रोबस्ट रेगुलेटरी रिजिम मिलती है। बैंकिंग सेक्टर एक है। एज अ रिज़ल्ट हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत कंपेटिटिव है, कंपेरेबल है रीजन में भी और ग्लोबली भी, और इसीलिए हम बहुत अच्छे बैंकर्स प्रोड्यूस कर पाए हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद जो दूसरा फोकस इतना डिटेल में मिला है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की रिजीम को मिला है। रीट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बहुत एलेबोरेट है। उसमें बिजनेस करने के लिए और उसको सक्सेसफुली करने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी है। बिजनेस में जो चैलेंज है कि कैपिटल नहीं आ पाता, कैपिटल लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो उसके अंदर बिल्ट इन है। और उसके बाद फिर जो इस बिजनेस का एक बड़ा चैलेंज है वो है लिक्विडिटी की मैनेजमेंट, बिकॉज ये लंपी सम्स का बिजनेस है, यानी छोटा काम भी करेंगे तो बिलियन प्लस का ही होगा, छोटा काम भी, और ज़रा रीजनेबल साइज पे जाएंगे तो वो 8, 10, 12 बिलियन की बात होती है। तो उस बिजनेस को, कैपिटल को मैनेज करने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए, और वो लिक्विडिटी का एक जो चैनल है वो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग है। आप वहाँ लिस्ट करके कैपिटल रेज भी करें और अपनी होल्डिंग को आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने ऐड अप कर दिया है रीट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। और जैसा अली असगर ने कहा, हम लोग इसमें लगे हुए हैं इस रिफॉर्म्स करने के लिए। और अभी रिसेंटली भी SECP ने रिफॉर्म्स किए हैं और अमेंडेड रीट रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं एंड उनको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है, इंक्लूसिव बना दिया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपना रोल प्ले किया है, बैंकों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने। और ये जो ट्रांसफर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का चैलेंज था उसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। FBR ने जो एनॉमलीज थी उनको रिमूव कर दिया है। तो सारे रेगुलेटर्स जो हैं इसकी तरफ काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये माहौल ऐसा बना है कि हम लोग इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। Thank you, Ejaz. उमर गनी साहब, आप बताएं about yourself and your organization. जी, थैंक यू खनानी साहब। सो मेरा क्विक तारुफ पिछले 10-12 साल से सिंस आई रिटर्न टू पाकिस्तान आई बिन द साउथ एशिया रीजनल हेड ऑफ अ ग्लोबल एडवाइजरी फर्म जिसका बुनियादी फोकस ensure capital may flow into those segments of our community which require to towards sustainable inclusive growth. स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर इनफैक्ट हिंदी साहब के साथ में और लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस बहुत रनिंग हुई चैनल हिंदी साहब के साथ। तो हाउसिंग वाज वन सेक्टर जिसमें काम किया हमने स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर फ्रेमवर्क डेवलप किया, बट इसके अलावा और बहुत से सेक्टर्स में यही काम हमने रेप्लिकेट किया। Currently, I am leading this knowledge innovation economic transformation project for World Bank, जिसमें बहुत से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी is enabling almost every sector, including real estate. मैं आपको ये बात बताऊंगा रियल एस्टेट से थोड़ी सी ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे करूंगा, बिकॉज हमें इस वक्त सोचना है ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस वक्त डिमांड सप्लाई क्या है उसको हमें किस तरह एड्रेस और उसको मैं थोड़ा सा आपसे डेटा शेयर करूंगा। लास्ट ईयर वी हैव अबाउट 48 इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स announced, out of which only roughly around 12 to 14 reached towards financial close. और ये जो हमारा मॉडल है जिससे हम इसमें फंडिंग ला रहे हैं अपने रियल एस्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत एक इनएफिशिएंट मॉडल है। So we need to look beyond this current model and figure out ways, innovative ways through which we can have domestic capital formation to fund our local infrastructure needs, including real estate. REIT is actually a very positive step forward. I look at REIT as a financial instrument. This financial instrument, what it allows you to do, it allows you to collect, pool together your local investors to come and fund underlying asset classes, which could be real estate or which could be other infrastructure assets as well, including digital infrastructure, including renewable energy, including a whole host of another. Any asset class which is income earning can ultimately be securitized using the REIT structure. So REIT actually is a very useful instrument जिसको अभी कुछ थोड़े बहुत ग्राहकों ने शुरू किया है. I took this idea and I went to Engineering Associates, which is a pretty large group, about a 5-decade-old organization in Pakistan. They've been involved in a whole wide variety of infrastructure projects, from road, tollways, bridges, buildings, mixed-use buildings, hospitality, hospitals, schools, not only in Pakistan but also in Middle East. अगर आपको Middle East के बड़े-बड़े projects देखेंगे, उसके पीछे भी Engineering Associates कुछ ना कुछ कर रहे हैं, from architecture, structures, MEP. तो उनके लिए हमने एक Veritas RMC बनाई है और इस बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि we wanted to create a new asset class for investors. Our group does not invest in our own. We don't have our own family office, so we're not cherry picking the best projects for our family offices and leaving the rest for the investors. We're creating a new asset class, a truly new asset class for investors, and trying to fill this demand supply gap that currently we have. Unless we can build world-class infrastructure, we cannot invite world-class firm companies to come to Pakistan. टेक रेवोल्यूशन की बहुत बात होती है, जब तक आप एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो बड़ी-बड़ी कंपनियां किस आएंगी पाकिस्तान में. और टेक रेवोल्यूशन की आपको टावर भी चाहिए, आपको डेटा सेंटर भी चाहिए, आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी चाहिए,
फिजिकल रियल एस्टेट भी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है उसमें REIT का एक मेजर रोल है और इंशाल्लाह इसको सिस्टमैटिकली हम इसी डायरेक्शन में लेके बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you, bro. Rahim Lakhani sir, would you like to introduce yourself and your organization? Thank you, Naeem bhai. I am representing Vision Capital Limited, which is advisory firm, and we advise with regard to various investments, including REIT. Now, the time has come whereby the real estate, the huge investment is required, and with regulatory bodies are involved in this. So REIT is the best solution in this way, which is helping to raise the funds and also to be regulated through regulatory authority. Documented economy is now day by day it coming. So REIT is creating two ways facility. One from tax point of view also. Now the people who are investing in REIT, they are given some tax benefit with regard to their tax rate when they manage their funds in the way where they are divide their income and divide their income with 90% of to the shareholder, they are tax-free REIT. So those who are selling property to REIT, they are getting benefit of exemption from tax. The REIT company who was doing the following the provision whereby their 90% profit are being distributed dividend to the unit holder, these companies are also exempt from tax. Nowadays, they are very much involvement after FATF and Anti-Money Laundering Act when they are notified. Now, normal builders are also required to be registered with Anti-Money Laundering. So, without documentation, now it is not easy to get work done, particularly in the sector of builder and real estate. So, REIT is where provide the documentation facility, tax facility, and also it is the instrument to raise the funds through, because nowadays size of investment is huge to get involved in the real estate business. So by way of REIT, we can raise the fund easily and it will be regulated easily, and there whereby now it is the time whereby you have no choice but to get yourself documented and come into the real economy. Otherwise, this type of project will not be viable from investor point of view, from buyer point of view. So the REIT is very much instrument of fundraising, tax incentive, and also the regulatory body to be followed, and whereby you can do business easily and smoothly. So this is what we are advising to the people, how to get the REIT form, how to get the REIT managed, and how to get the benefit of the exemption and the available regulatory REIT. So this is the what I am saying, that REIT is the right time to get involved for huge project, for documentation, and for tax facilities. So Thank you, Rahim Saab. Ejaz Saab, you have experience of Arif Habib Development REIT. तो आरिफ हबीब डेवलपमेंट REIT 2015 में आई और आज तक कोई और REIT नहीं आई, इसकी क्या खास वजह थी? और अब अचानक से कोई अराउंड 600 बिलियन की REITs पाइपलाइन में है, जरा इस पर रोशनी डालें। और क्या अभी तक सफर रहा आरिफ हबीब डेवलपमेंट REIT का? टाइप्स भी बता दें, रेंटल REIT और डेवलपमेंट REIट और हाइब्रिड। और हाइब्रिड REIट हमारे अभी तक कोई लिस्ट नहीं हुई, तो ये कोई नजर आ रही है? और शुक्रिया। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि कोई काम सही तरीके से अगर करना हो तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और रियल एस्टेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली इनफॉर्मल सेक्टर उसको डोमिनेट किया। तो पहले ये जो हम अक्सर ऐसी बात करते हैं कि REIT बनाए हुए हमें तकरीबन 12-13 साल हुए हैं, तो हम लोग मक्की दौर से गुजर रहे हैं जब बहुत चंद लोग मुसलमान हुए थे। पिछले साल जून हमने यानी कि 2009 में कंपनी बनाई, 2015 में पहली REIT लाए, और फिर 2021 तक कोई दूसरी REIT नहीं आई, और फिर 2021 में मदनी दौर शुरू होता है और हम 6 महीने में हमने 10 REITs क्रिएट की। तो अब जो है अब ऑलमोस्ट हम 2 REITs एक क्वार्टर में कर रहे हैं। यानी अब सब लोग समझ गए हैं, रियलाइज कर रहे हैं
कि रियल एस्टेट बिजनेस अगर करना है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस तो रीट इज़ द वे टू गो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना के रख दिया है रेगुलेशंस के अंदर कि आप रियल एस्टेट बिजनेस इस मोड में करें। और इसमें रेंटल का बिजनेस भी हो रहा है, डेवलपमेंट का बिजनेस भी हो रहा है। और ये जो नाम है कि ये रेंटल है या डेवलपमेंटल है, ये मुझे लगता है कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रीट की तरह ऑर्गेनाइज हैं, जिसका मतलब है कि आपके एसेट्स और आपके अकाउंट्स को एक ट्रस्टी देखता है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है या डबल ए रेटेड बैंक है। तो जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, जैसा कि रीट मैनेजमेंट कंपनी है या डेवलपमेंट पार्टनर हैं, वो एक ज़ाब्ते के तहत ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप्स नहीं हो पाती हैं वो इस वजह से भी नहीं हो पाती कि लोग एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो वीक है सिस्टम। तो लेकिन रीट की रजीम की वजह से ये पॉसिबल हो गया कि एसेट्स और अकाउंट्स वो ट्रस्टी के पास हैं। आरएमसी जो है वो सिर्फ लिखे हुए ज़ाब्ते के तहत इंस्ट्रक्शंस पास कर सकती है, और जिनके पैसे लगे हुए हैं वो यूनिट होल्डर हैं और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ट्रस्टी उनके इंटरेस्ट को देख रहा है, SECP उसकी ओवरसाइट कर रहा है, रेटिंग हो रही है रीट की तो रेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व है, वैल्यूएशन हो रही है एसेट की तो वैल्यूअर इन्वॉल्व है, ऑडिट हो रहा है अकाउंट्स का तो ऑडिटर इन्वॉल्व है, लिस्टिंग हो गई है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व है। वो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी की वजह से सबके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और जो जिन्हें परफॉर्म करना है उनकी परफॉर्मेंस की एक विजिलेंस है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह है, वो अफराद को जवाबदेह नहीं है। उसकी वजह से एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीने में हमने 12-13 रीट्स क्रिएट की हैं, और अभी लास्ट 14-15 तारीख को सब्सक्रिप्शन हुई थी ग्लोब रेजिडेंसी रीट की। ये पहली डेवलपमेंट रीट है जो लिस्ट हुई है। मैं ख्याल है अगले 6 महीने में हम लोग 4-5 रीट्स और लेकर आएंगे लिस्टिंग के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को चांस मिले। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। सेविंग लो है हमारी, सेविंग लो है इसलिए कि बचत करने वाले को रिटर्न नहीं मिलता है। अब जो अगर रिटर्न अच्छा मिलेगा तो उससे इंसेंटिव आएगा होने में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड वी सी के पॉजिटिव चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू एजाज। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं टू Just wanted to add, building on Ijaz bhai was saying, Ijaz bhai, and you can endorse what I'm saying. In this environment, selling is very hard. So traditional model of development, sponsors would come together, design a project, and then start marketing units, generating sales, and using sales money to further develop the project. आजकल की environment में selling a unit has become very challenging, which is also creating a very unique opportunity for RMCs and REITs to bridge that gap, to partner. And जेगम साहब आपने भी बात की, लैंड, बहुत सा लैंड है, बिलियंस का लैंड है जो ना उनके फायदे का ना तो बहुत सी इस तरह की आप ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कर सकते हैं where if you have the land but you don't have the money to develop, you can partner with REITs. You can partner with REITs where they bring in the money to develop it, market it, and profits with landowners and investors according to the shareholding they have. तो ये नई अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं इस एनवायरनमेंट में, स्लोइंग डाउन इकोनॉमी में, बट नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है. एंड आई थिंक दिस इकोनॉमिक डाउनटर्न इज आल्सो क्रिएटिंग अ बूस्ट टू द आरएमसी मॉडल. जी जी प्लीज. ज़्यादा ज़रूरत है वो है चेंज इन माइंडसेट की ज़रूरत. ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये कैपिटल नेचर का बिज़नेस है. मुझे मेरी याददाश्त में नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हमने 5 साल से पहले कंप्लीट किया हो. यानी 5 साल, 8 साल, 15 साल बड़े टाइम के प्रोजेक्ट हैं. तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में होने चाहिए. एक फ़र्द कितना ही बड़ा हो वो फ़र्द होता है, उसकी सेहत, उसकी ज़हनी कैफियत, उसकी ज़िंदगी, वो सब, ये वो तमाम रिस्क्स हैं जो प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े होते हैं. सो जिस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है कि वो लॉन्ग टर्म है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट भी होनी चाहिए जो परपेचुअल हो, यानी एक इंस्टीट्यूशनल हो, और वो उसके तहत होनी चाहिए. दूसरा जो पार्टनरशिप की आप बात करें, रीट जो है ये बिजनेस रिस्क को एड्रेस नहीं करता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है.
सो अगर सेल्स स्लो हो गई है तो रीट के बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा नेगेटिवली। बिगड़ा हो और फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, यानी कि मुझे अपनी मजबूरी में आपको पार्टनर नहीं बनाना है, मुझे अपनी खुशहाली में आपको पार्टनर बनाना है। सो आई थिंक ये दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बैंक के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको ये रीट ही खत्म कर सकती है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कोर्ट में केसेस आ जाते हैं कि ये इलीगल बना हुआ है, ये मसला, ये मसाइल, तो ये मसाइल होंगे ना कि रीट होगी, क्योंकि इट इज मैनेज्ड बाय सब प्रोफेशनल फर्म। तो मेरा कहने का मकसद ये ट्रस्ट डेफिसिट को भी आपको गैप को कम करेगा। आपने बड़ा अच्छे सवाल का जवाब दे दिया कि सारी चीजें ट्रस्टी के पास हैं। जैसे एजाज साहब ने कहा कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, तो जो लैंड है वो भी ट्रस्टी के पास है, जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं यूनिट्स की वो भी ट्रस्टी के पास जाती हैं, जो पेमेंट्स बिल्डर को डेवलपर को करनी है, ठेकेदार को करनी है, वो भी ट्रस्टी के थ्रू जाती हैं। और रीट की जो रेगुलेशंस है 2015 उसको आरएमसी को फॉलो करना है, उसको लेके चलना है। एजाज ये बताएं कि जिस रेंटल रीट को आरिफ हबीब डेवलपमेंट रीट आप रन कर रहे हैं, इसकी यील्ड क्या है और कौन कोई इन्वेस्टर कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इसका एडवांटेज ले सकता है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट सिटी मॉल कराची जो है, उसमें कोई अगर रीट लेना चाहे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसको कितनी करनी होगी और उसका अभी तक का जो यील्ड रहा है वो क्या रहा है और एक्सपेक्टेड फर्दर आपको क्या यील्ड नजर आ रही है उसकी? डॉल्मेन सिटी रीट जो है वो डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन जो है वो और हार्बर फ्रंट जो ऑफिस बिल्डिंग है उसके ऊपर मुश्तमिल है। ये तकरीबन 5.5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है और तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, जिसमें टॉप रेटेड कंपनीज जो हैं वो टेनेंट्स हैं। उसमें हमारी जो फेस वैल्यू पे जो हमारी डिविडेंड है वो तकरीबन 15% के करीब है। यानी कराची में बोलते हैं कि थंब रूल ये है कि अगर आपने ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है 100 रुपए में तो आपको एनुअल रेंट जो है वो 6 रुपए आता है और उसके बाद फिर उसकी हैसल भी है मेंटेनेंस सबकी। लेकिन डॉल्मेन क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें हमने जो ऑफर किया था उस टाइम पे 10% यील्ड थी, लेकिन किरायों के बढ़ने की वजह से इस वक्त फेस वैल्यू पे आपको 15% की यील्ड एक्सपेक्टेड है। यानी 10 रुपए का यूनिट लें आप तो आपको 1.5 रुपए का किराया मिलेगा साल का, और वो हम क्वार्टरली उसको पे करते हैं। और इन्वेस्टर जो है वो कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकता है? 5,000 रुपए से या 6,000 रुपए से आप यानी 500 यूनिट्स खरीद लें तो आप उसके यूनिट होल्डर बन जाते हैं। जी अली असगर साहब, टीपीएल आरएमसी जो है वो आईपीओ कब तक कर रही होगी और कौन सी ऐसी रीट है जो आईपीओ के करीब है? और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट रीट, हाइब्रिड या रेंटल की तरफ भी कुछ टीपीएल जा रहा है? तो नईम साहब, हमारी जो पहली रीट है विच इज़ टीपीएल रीट फंड 1, जिसके अंदर मैंने कहा कि वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स। सो आर एम एंड विजन वाज टू क्रिएट अ परपेचुअल व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ रीट फंड एंड अंडरनीथ इट हम उसको एसपीवी मॉडल पे लेके गए। सो उसमें ग्रोथ एलिमेंट आपका आ जाता है बिकॉज योर फंड इज परपेचुअल। जो इन्वेस्टर आ रहा है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के डिजाइन को देख के अपना इन्वेस्टमेंट कॉल लेता है उसके अंदर। सो दैट्स आवर डेवलपमेंट रीट ऑन डे 1 एंड इट विल बिकम हाइब्रिड बिकॉज इट हैज सम एलिमेंट जो इन फ्यूचर कंप्लीशन के बाद रेंटल मॉडल के ऊपर जाएंगे। एक्सपेक्टेड यील्ड क्या देख रहे हैं? इसमें एजाज ने कहा रेंटल का 15% है, तो व्हाट यू आर इसमें जो हम रिटर्न देख रहे हैं हमारे इनिशियल इन्वेस्टर के लिए हु हैज इन्वेस्टेड ऑन डे 1, तकरीबन कोई 30 से 35% IRR की टर्म्स में हम इसमें रिटर्न देख रहे हैं। एंड इसमें थिंग इज बिकॉज रीट रेगुलेशन ऑल्सो अलाउज कि यू कैन गो फॉर लिस्टिंग टिल 3 years। सो we'll go for listing between second and third year वैल्यू क्रिएशन करने के बाद। एंड सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर रीट पे भी जो फोकस है ऑन अ डे 1 विल बी डूइंग इट एज अ प्राइवेट रीट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इसको रिटेल मार्केट में लेके आएंगे थ्रू लिस्टिंग विद इन 2 to 3 years। ठीक है। रिस्क मिटिगेशन के लिए कोई रिस्क है यूनिट होल्डर के पास? अगर उसके ऊपर रीट है, कुछ भी यूनिट्स हो, 500 यूनिट्स हो या 5 लाख यूनिट्स हो, तो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद रीट्स? श्योर, देखिए रिस्क जैसे एजाज ने कहा and that's true, I endorse his opinion के risk is there, it is an equity investment, but how this risk is somehow mitigated
because of the model which is 100% institutionalized, the model which ensure governance, the model which ensures transparency. There are regulator looking at it. There is RMC, which is a licensed RMC. Segregation of duties है कि ट्रस्टी अपना काम कर रहा है, RMC अपना फंड मैनेजमेंट कर रही है, जो पेमेंट्स होनी है ऑल्दो ट्रस्टी से होनी है, बट देयर इज लेयर इन बिटवीन इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट रीट अकाउंटेंट विच इज एनी रेटेड टॉप रेटेड चार्ट अकाउंटेंट फर्म. सो कहने का मकसद है, एंड सेकेंडली जो आपका बिजनेस प्लान है या IM है या प्रोस्पेक्टस जिसको आप कहते हैं, दैट्स एक्ट एज अ बाइबल for this. So without the investors approval and the commission's approval or a trustee's approval, you can't change it. So you need to stick to it. So as against a single developer or proprietorship which can do and develop at his whims and wishes, तो जो आपका end user है या जो investor है, it's always वो एक uncertainty में रहता है. So this removes uncertainty and manage the risk systematically. थैंक यू. ये सारी रीट्स जो है वो नॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी रीट्स हो सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है. जैसे आपसे ये सवाल है कि गवर्नमेंट के पास बड़े लैंड बैंक्स हैं, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमें बहुत सारी एमिनिटीज़ बिल्ड करनी है अर्बन सेंटर्स में भी, अर्बन सेटिंग्स में भी, रूरल सेटिंग्स में भी. तो क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रीट पर हो एक, और अगर अभी तक नहीं है तो क्या कोई एक्सपेक्टेड इस तरह की कोई रीट आपको नज़र आ रही है? एक तो अगर आप मुझे ऐसी इजाज़त दें, मैं वैसे नईम साहब क्योंकि मेरे डायरेक्टर भी हैं तो मुझे ये भी रहता है कि आप मेरी परफॉर्मेंस को इससे मार्क नहीं करेंगे. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे महसूस होता है पाकिस्तान में वो कम्युनिकेशन का है. यानी अभी रीट पे सेशन हो रहा है तो आप यहाँ से बैठ के अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिलचस्पी का लेवल क्या है. तो मैंने एक ज़माने में SCCP को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप दीपिका को रीट का एम्बेसडर बना दें तो शायद लोग उसकी बात सुने और उसको देखें और वो रीट को अंडरस्टैंड करें. तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है वो इसको इम्पोर्टेंस मिल नहीं रही है हमारे मुख्तलिफ फोरम्स पे. यानी मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं स्टेट बैंक में जाके कभी रीट की बात करता हूँ कि वहाँ पे भी अवेयरनेस नहीं, हालांकि वो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सिस्टम के, और रियल एस्टेट एसेट जो है वो एक बड़ा पार्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, लेकिन रीट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ. इस वक्त सारी तरह का रियल एस्टेट बिजनेस वो रीट के मोड में हो सकता है. SCCP ने रेगुलेशंस को बहुत इंक्लूसिव बना दिया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रीट के मोड में हो सकते हैं. और हम लोग जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, उसका जो पहला ऑप्शन होता 2000 एकर्स का, वो हमने कंसोर्टियम बना के उसको विन किया था और वो रीट के मोड में ही डेवलप हो रहा है. सो PPP का जो मोड है वो भी रीट में लागू होता है. यानी कि मैंने बताया ना कि बिजनेस के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी है वो रीट उसको कवर कर रहा है. अब सिर्फ चैलेंज है कि उसको हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएँ टू द राइट स्टेक होल्डर्स. थैंक यू. जी रहीम साहब. सवाल है ना वो जो बहुत यहाँ रीट क्यों पॉपुलर नहीं हो रही और रीट को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, इसकी बेसिक जो इनके जहन में, सबके जहन में एक ही सवाल ये होता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑफिशियल पेमेंट एंड अनऑफिशियल पेमेंट. एंड दिस द राइट क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एवरीवेयर. इसलिए कि रीट दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो रही है जहाँ ये मसले है ही नहीं. अब ये मसला यहाँ ये आ रहा है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए. तो इसके लिए इसको एड्रेस करने के लिए आपको आज बुलाने का मकसद ही यही था कि आप बताएं कि जितने भी बिल्डर है ना चले गए ये सुन के, वो यही कहते हैं कि भाई ये कितना ब्लैक होगा कितना वाइट होगा. एग्जैक्टली. तो इसी को एड्रेस, ये ना अभी जो मेरे भाई कह रहे थे ना कि ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि इसके मेन क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए एक आधे घंटे का सेशन या 1 घंटे का सेशन नहीं है. इट रिक्वायर्स कंटिन्यूसली एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू बी ब्रॉट इन देयर माइंड. इसके सोल्यूशन है, अगर हमारे पास है तो हम आपको बताएंगे किस तरह इट कैन बी मैनेज, और बहुत आसान है. रीट में सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है. आप अपनी पूरी ऑफिशियल पेमेंट दिखा दे पूरी, वो जो बेचने वाला है उसको टैक्स फ्री है, जो खरीदने वाला है उसके लिए इसके लिए रेगुलेशन है,
लेकिन अगर आप आगे आएंगे तो इसके सोल्यूशन है, और इसी का सोल्यूशन अगर आपको मिल जाएगा तो आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी टू गो विद द रीट। थैंक यू। उमर, आप कुछ लाइट थ्रो करेंगे? ईट का कैनवस है वो बहुत बड़ा कैनवस है। इसमें जिस तरह भी आपने बात की, गवर्नमेंट का बहुत सा लैंड है, गवर्नमेंट लैंड बेच नहीं सकती, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रीट्स में जा सकती है। दुनिया ने रीट के मॉडल को, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। दुनिया ने रीट इंस्ट्रूमेंट को यूज किया टू एक्सेलरेट देयर रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान में ये चीज 12 साल से 14 साल से एजाज साहब मैं भी देख रहा हूँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इसकी अपटेक इतनी तेजी से नहीं शुरू हुई, बट आगे अब होप है कि चीजें बढ़ेंगी। इसमें बैंक्स भी आ सकते हैं। बैंक्स जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टुमारो दे कैन इवन गेट सरप्लस रिलीफ, कैपिटल रिलीफ बाय सिक्योरिटाइजिंग देयर मॉर्गेज पोर्टफोलियोज, बाय लॉन्चिंग मॉर्गेज रीट्स। तो कैनवस इज ह्यूज। हम यहाँ पे सोशल इश्यूज की बात कर रहे थे, जानारा भी आई हुई हैं, टेक्नोलॉजी, जुनैद इमाम भी आए हुए थे। एजुकेशन, बच्चों तक आपने एजुकेशन पहुंचानी है। सो मेनी आउट ऑफ स्कूल किड्स, वी डोंट हैव इनफ स्कूल्स। One approach is going purely digital. The other approach is building the brick and mortar, or we can take a median route, which is blended approach. How do we create that physical infrastructure for schools? REIT can go and you can specialize REITs. So we are in discussions with school operators, for example, quality school operators who have established brands, who are operating in only tier 1 cities. Partnering with them, we will bring in the funding to create school networks across tier 2, tier 3 cities. They operate. उनकी इस वक्त वेल्थ स्टार्टअप है इन देयर रियल एस्टेट इन टियर 1 सिटीज जो उन्होंने स्कूल्स बनाए हुए हैं। वी कैन get them to get their money out of their existing assets and help them raise more money through developmental REITs to build new schools, and then blend it with technology to go out and address these social issues. हेल्थ केयर में आप आ जाए इसी तरीके से, अस्पतालों का आपका इस वक्त इतना यहाँ पे डिमांड सप्लाई गैप है, जो आपने ब्रिक एंड मॉर्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है उसके अंदर रीट एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। एसेंशियली ये एक सिक्योरिटाइजेशन मॉडल है जिसको यूएस ने अडॉप्ट किया 80s में। बैंकिंग का जो मॉडल था उसमें बाय एंड होल्ड मॉडल, आप लोन देते थे, उस लोन पे बैठते थे टिल द लोन मैच्योर्स, देन दे वर एबल टू क्रिएट सेकेंडरी मार्केट्स बाय यूजिंग सिक्योरिटाइजेशन मॉडल। दैट हेल्प फास्ट ट्रैक यूएस टू बिकम व्हाट यूएस इज टुडे। ठीक है, उसमें सब प्राइम भी आया और इश्यूज भी आए। वी शुड लर्न फ्रॉम सब प्राइम इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट दोज लेसन्स इन आवर मॉडल टुडे। जो अंडरराइट कर रहा है लोन, we should not allow them to wash away their hands and walk away by selling off their loan portfolio. They should be made to keep a skin in their game. But nonetheless, ये एक चीज है जो अब शुरू हो रही है, इसको अगर हम सारे अच्छी तरीके से समझें और यूज करें। और जो तीसरी चीज है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल इकोनॉमी की। हिस्टोरिकली जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल की बात है, उसकी वजह से बहुत हमारा ये चीज रुकी है और आगे इतनी देर से नहीं बढ़ी। बट जो आगे आने वाले हालात हैं, FATF और जो कंडीशनैलिटी हम पे डाली जा रही है, मकरूज मुल्क है हमारा, तो ये जो हनीमून पीरियड है इनफॉर्मल रियल एस्टेट सेक्टर का खत्म मेरे ख्याल से होने वाला, उसका वक्त आ गया है। तो द अर्लियर वी अडॉप्ट द REIT मॉडल, अंडरस्टैंड दिस मॉडल एंड यूज इट, the better for all of us involved in the real estate sector. So there's some hands. Thank you. like to add कि ये जो उमर ने बात की, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो आपने उस मॉडल में आना तो है ही, इंस्टीट्यूशनलाइज या कॉर्पोरेट फोल्ड के अंदर। सो इट्स बेटर कि जल्द उसके अगेंस्ट कदम ले लिया जाए। सेकेंडली, जो उमर ने बात की और जो जुनैद इमाम ने भी कहा कि हम पीछे हैं, बट इसका एक एडवांटेज ये भी है कि वी कैन लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो ऑलरेडी दुनिया के अंदर आपकी बस टर्मिनल्स की भी रीट्स हैं, आपकी टावर्स की भी रीट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स की रीट हैं, आपकी स्कूल्स की रीट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में, मिडल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं सक्सेसफुली। सो इट्स अ बेस्ट मॉडल टू फॉर अ रिसोर्स मोबिलाइजेशन और फॉर इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन। टूरिज्म में रीट्स है, हॉस्पिटलिटी में आप अगर देखें तो मलेशिया में हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर की बहुत बड़ी रीट है। जिस तरह उमर बता रहे थे, सनवे लगून ग्रुप जो मलेशिया में, वो भी रीट्स में इन्वॉल्व है। बस लास्ट अब राउंड हम लेते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी फॉर रेगुलेटरी टू फर्दर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन रीट्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स? क्या RMC के CEO होते हुए आप क्या समझते हैं कि फर्दर अगर हो तो क्या मेजर्स ले रेगुलेटरी के ये फर्दर बूस्टअप हो जाए? आपसे स्टार्ट लेते हैं। मेरे हिसाब से नईम साहब, रेगुलेटर हैज प्लेड इट्स रोल।
काफ़ी रिगोरस इसके ऊपर काम हुआ है, एंड नाउ वी कैन से कि इट्स इनेबलिंग रेगुलेशंस एट द मोमेंट. नाउ इट्स टाइम कि हम आगे बढ़े. देखिए, चेंज किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी मुल्क के अंदर इज ऑलवेज लेड बाय प्राइवेट सेक्टर. वी कैन नॉट वेट कि एवरी टाइम गवर्नमेंट ही, अब गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करके रीट नहीं लेगी. गवर्नमेंट के लिए हमें रीट लानी है कि उनका रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करके ला सकें फ्रॉम अ रिटेल सेक्टर, रादर के आपके हमेशा डेवलपमेंट फंड्स उस वक्त उस तरफ चोक हों. सो मेरे ख्याल से एज अ प्राइवेट सेक्टर वी नीड टू टेक दिस इनिशिएटिव. वी नाउ नीड टू कैपिटलाइज ऑन इट. Thank you. Omar. Gee, there's only one way to move forward, and that is moving forward without leaving anyone behind. Segam Saab was talking about slums and poor community. मैं समझता हूँ REIT while developing, it's not just for the elite. We also have to take a view of the poor. How do we create opportunities for them and move them along with us? तो ये जो हमारे रीट के स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें सिक्योरिटाइजेशन क्लासेस बनाई जा सकती हैं और इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लेवरेज किया जा सकता है. और गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है, उसको rather than coming and giving grants and subsidies, perhaps through State Bank and State Bank subsidiaries like SME Credit Guarantee Company or Mortgage Refinance Company, they can issue credit guarantees, which is a very powerful policy instrument. It allows REITs to have higher credit ratings, enhancement credit ratings की, और जो लो इनकम और जो इस तरह की कम्युनिटीज़ के लिए अगर आप उसमें प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं अपने रीट्स में, उनके जो रिस्क है उसको रिस्क को भी अब्जॉर्ब करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बहुत इफेक्टिवली यूज किए जा सकते हैं. इससे आपको मल्टीप्लाई मिलता है. सो एवरी डॉलर or every rupee that the government will spend in a credit guarantee, they can generate a multiplier up to 10, meaning they can mobilize commercial finance of up to 10 times. But if they use it as a grant, they will just be using 1-to-1 ratio. तो ये credit guarantee को हमें एक ज़मीनी सवाल है कि जो फ्लड की वजह से जो जितना क्राइसिस है, वर्ल्ड बैंक जो अभी हाउसिंग वगैरह करेगी, क्या रीट के थ्रू फंड रेज हो सकता है जो भी रीडेवलपमेंट होनी है? जी बिल्कुल हो सकता है. उसमें आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपने थोड़ा सा सामने रखना है. रीबिल्डिंग बट बिल्डिंग बेटर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हर बार जो आपका फ्लड आता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, अगली बार जब फ्लड आए तो ये फिर से आपको रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू ना करना पड़े. तो उस पर कुछ सोच हमें डालनी है. उसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आके हमें बताएं हाउ डू वी बिल्ड better and more resilient infrastructure for future. Thank you. एजाज साहब. सर, मेरा ख्याल तो ये है कि मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं जनरली हम लोग. पिछले 10-20 साल से ही मैं तो देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो चैलेंज से गुजर रही है, और इसमें हर फैसला सोच समझ के करने की ज़रूरत है. मुझे तो लग रहा है कि थिंकिंग को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, यानी गवर्नमेंट की साइड से भी और प्राइवेट सेक्टर की साइड से भी. यानी सरकार अगर इंटरफेयर नहीं करे तो हम लोग काम कर सकते हैं. वो कमीशन बना के पॉलिसी नई उसमें अमेंडमेंट कर दे, वो नहीं करे, वो तो हमें काम करने दे. तो सरकार की इंटरफेरेंस कम हो. दूसरा, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा एक्शन ज़्यादा करे, थोड़ा बात कम करे और थोड़ा एक्शन ज़्यादा करे. प्राइवेट सेक्टर भी, अगर आप देखें तो हमने कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई छक्के नहीं मारे हैं, कोई झंडे नहीं गाड़े हैं. टू बी ऑनेस्ट, इस शहर की जो हालत हम लोगों ने की है वो हम बिल्डरों ने खुद की है. यानी कि खुदा न खास्ता किसी को अपना मांस खाने की बीमारी हो जाए, मुझे तो लगता है वो हुई है हमको. लेकिन खुद अपने पैसे खर्च करके अपने ही शहर को तबाह कर रहे हैं. वो तो सरकार नहीं कह रही है. वायलेशन कर रहे हैं डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, वो सरकार तो नहीं कह रही है, वो हम ही कर रहे हैं. तो उनको नहीं करने की जरूरत है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है, अब सिर्फ काम करके दिखाने की जरूरत है. जब हम लोग डॉल्मेन सिटी रीट लाए थे तो हम 5 एप्लीकेशंस लेकर गए हुए थे SCCP में रीट के लिए, और एक भी एप्लीकेशन मूव नहीं कर रही थी. तो फिर हमने उसमें से बेस्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की और 4 एप्लीकेशंस को छोड़ दिया. बोले कि एक कर लो, एक हो जाएगी तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और वो बेस्ट प्रॉपर्टी रखो, उस प्रॉपर्टी पे कोई सवाल नहीं हो. इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी, डिजाइन, इस इकोनॉमिक केस, सब कुछ, हर चीज A+ है. तो वो रीट हो गई. और वो भी हालात कुछ ऐसे ही थे पाकिस्तान के. हमेशा पाकिस्तान के हालात झूलते ही रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी कोई इस्तेहकाम मिल सके. तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए. इनके 25-50 रीट्स हो जाएंगी जो डिविडेंड देंगी, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा तो काम आगे बढ़ेगा. अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ही 2.5-3 लाख हैं. क्या है मतलब 2.5-3 लाख इज जीरो.
वो थोड़ा कोई एक्शन की ज़रूरत है, थिंकिंग कम और थोड़ा एक्शन फास्ट, ऐसा लग रहा है। रहीम साहब, मेरे ख्याल में तो देखिए अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अपना रोल प्ले कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रही है रीट के मामले में। अब वो अथॉरिटी जो प्लान अप्रूवल अथॉरिटी है ना, उनको भी रीट पे आना चाहिए, उनको भी कोई रीट को भी हमारी टीम का पार्ट बना के चलना चाहिए, क्योंकि इनको रीट 6 से जो प्रोग्रेस है और आम प्रोग्रेस में फर्क होना चाहिए। तो ये भी अपने रीट के लिए कोई सहूलत दें जो अप्रूवल अथॉरिटी है, जहाँ बार बार ये प्रॉब्लम होता है कि सही अप्रूवल नहीं दी, ये अप्रूवल मसला। तो जितने भी ये जो अप्रूवल अथॉरिटी है, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी, ये दूसरी अथॉरिटी, दे शुड बी ऑल्सो कम विद द रीट फैसिलिटी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक के साथ साथ इनको भी अब आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए रीट की फैसिलिटी। थैंक यू वेरी मच। ये बिगिनिंग है फॉर न्यू एरा रीट का। मेरा ख्याल है प्रोबेबली एजाज ये पहला कोई पैनल डिस्कशन होगा जो शायद रीट पे हो, और इस तरह के और पैनल डिस्कशंस और इस तरह के और प्रोग्राम्स होंगे तो रीट की अवेयरनेस बढ़ेगी। और अच्छी बात है कि एनईडी यूनिवर्सिटी और केपीके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये रीट के लिए देख रही हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उसमें देख रही हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने वहाँ से PFIST के डायरेक्टर को भेजा कि आप समझें कि रीट पे क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली उनके फैमिली में डेथ हो गई तो उनको जाना पड़ा, वरना वो आए इसीलिए थे इस पैनल को सुनने के लिए। तो ये अच्छा है, ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। एंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं एजाज? बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अरेंज किया। अगर मैं जॉन एलिया साहब का एक शेर कहूँ और अगर गलती हो तो तस्हीह कीजिएगा कि एक ही सानेहा तो है और वो ये कि बस बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो कम्युनिकेशन का गैप है, वो पीछे देखें लिखा हुआ है, AI का तर्जुमा हुआ है मसनूई जहानत। ये है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। अनसिक्योर्ड डेट इशू करते हैं, उसका उर्दू तर्जुमा किया गया गैर महफूज डेट। कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर? सही बात है, सही बात है। थैंक यू वेरी मच। A round of applause प्लीज। थैंक यू, थैंक यू जी। Indeed, beginning of the new era. It was our esteemed panelist, MHR CEO, Arif Habib Dolman Reed, Ali Asgar CEO, TPL Reed, Umar Ghani CEO, Versatile Reed, Rahim Lakhani, Vision Capital Limited, and it was moderated by Naim Ilyas Kiani. Thank you so much. It was indeed a fruitful discussion. Now I would like to call upon Shan Agha. He will be talking about the comparison of real estate development in Turkey and Pakistan. Please welcome Shan Agha, CEO, Azad Properties. Attention everyone, you are all requested to please take your seats as the speaker is standing over here. If you want to have any kind of discussions, you may go outside the conference room and have it, but please maintain the decorum of the conference room. Thank you. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम शान आगा है. I'm representing Azad Properties from Turkey. Before I introduce myself or my company, I'd like to thank PropTech, especially Mr. Atif, who's the brain behind this. I think this is a really good initiative that PropTech has taken. It's something that Pakistan needs, Karachi needs. It's a step forward.
There is a lot of need for technology to be used in Pakistan. Coming from Turkey, I can say this because I've lived there now almost 20 years. I've been in this business for over 10 years. And living there, I know, and dealing with a lot of people coming from Pakistan, I can tell the difference between Pakistan and Turkey in terms of technology. This event has been really nice. I've been here since morning. I've seen people talk about AI, about REIT, about virtual real estate, about the metaverse, about a lot of things which seem to be further in the future for Pakistan. But coming down to the basics, I think Pakistan lacks the basic infrastructure that technology has to offer. I'll give you a very small example. For example, people coming from Pakistan, they often ask us, is property की file किधर है? And I tell them, यहाँ पे file exist ही नहीं करती. हमारे वहाँ property का एक document होता है, which is a one-pager. Title deed कहते हैं. And even if you lose it, it really doesn't matter because everything is recorded online. You can just go to the office and present your ID and get your title deed again. So everything that you have in a file in Pakistan, it's actually recorded with the government online. You have a username and password. You can go online and access all the information of the property that you own. Another example, someone who comes into Turkey and asks for a piece of land and says कि ये ज़मीन है, इसका owner कौन है? पाकिस्तान में अक्सर जो है हमें ये नहीं पता चलता इसका असली ओनर कौन है, सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है, लैंड डिमार्केशन क्या है, इसकी लैंड में कंस्ट्रक्शन की कितनी इजाजत है. So all of this is something which is very, very basic, and very basic technology can be used in and making this available for everyone. There should be public information. Anyone should be able to go online, check a piece of land and check its demarcations, see what is constructible on that piece of land, कितना उसमें green area छोड़ना है, कितनी उसमें इजाजत है, कितने floor बनाने की. ये बहुत basic information है जो पूरी दुनिया में public information होती है. सबको इसका access होना चाहिए. What this does is it gives the market a lot of confidence. लोगों को भरोसा होता है market पे, लोगों को trust build होता है, efficiency levels increase होते हैं. अगर आप immediately अपने ऑफिस में बैठ के कोई जमीन दिखा सकते हैं किसी को और उसको बता सकते हैं कि सर इस पे 4 फ्लोर बन सकते हैं या 5 फ्लोर की परमिशन है, तो आप आधे घंटे के अंदर 5 जमीनों को डिस्कस कर सकते हैं. On the other hand, I see a lot of times something like this does not exist in Pakistan. If it does, maybe I'm sorry for my ignorance, but there are a lot of times when there is misinformation, disinformation, that basically gives a lot of inefficiency in the market and also a lot of distrust. So a lot of foreign investors, a lot of people come to Turkey, and a lot of people say कि आप Turkish investors क्यों नहीं लाते पाकिस्तान में? पाकिस्तान में Turkish investor लाने का सबसे बड़ा problem है trust. पाकिस्तानी मार्केट में वो ट्रस्ट नहीं करते. ट्रस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है. हमें एआई की और बाकी चीजें जो आज डिस्कस हुई हैं सारी, उन बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है. वर्चुअल रियल एस्टेट की जरूरत नहीं है. हमें अभी सिर्फ एक अच्छे से मैप की जरूरत है और अच्छा एक डेटाबेस की जरूरत है जिसमें हर चीज इंफॉर्मेशन मौजूद हो ऑनलाइन, बेसिक इंफॉर्मेशन सबके लिए, कि जो सब एक्सेस कर सके और एक फॉरेन इन्वेस्टर भी आके उसको ट्रस्ट डेवलप हो सके कि यस, दिस इंफॉर्मेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्यूरेट. So that way we will be able to get a lot more foreign investors into Pakistan and not investors saying कि मैंने लाहौर में ट्विन टावर में प्रोजेक्ट में पैसे डाले थे और बंदा पैसे लेके भाग गया. Because this is an actual story. It has happened for Turkish investors coming into Pakistan, investing in certain provinces in Pakistan and losing a lot of money. You think once this happens, how many future investors are going to hesitate coming into Pakistan again? I think quite a few. So moving on to what we do in Turkey, because I've been there so many years and I'm honored to be invited here. So since I have the chance of telling you guys what we do in Turkey, I will continue with the presentation of our company, which is called Azad Properties. We basically manage investment portfolios, mainly in real estate,